A very good evening to one and all present here. I'm Sandeep Ansali from the team GIBS Business School, Bangalore, and I would love to welcome you all to the GIBS IRE Talks. And today's session is very interesting. It's going to be very interesting. We have Mr. Shivam Ahuja, who's a TEDx speaker, Joe Stock speaker, and he's also founder and CEO of Skill Circle India. And it's my pleasure to introduce, before we proceed, it's my pleasure to give you a brief about GIBS. GIBS Business School Bangalore is a prestigious institution dedicated to nurturing personal and professional growth through innovation, research, and entrepreneurship. Our wide range of programs include PGDM and BBA that are meticulously designed to foster the leadership skills and facilitate the networking opportunities with industry professionals. At GIBS, we take pride of our IRE program or IRE school, say Innovation Research and Entrepreneurship School, which offers a comprehensive resource to empower aspiring entrepreneurs in transforming their ideas into a real-time thriving business. And this will help them to get an overall well-rounded education that equips them for success, and prepare them ready for the industry circle today. And today's topic, which Shivam sir would be speaking on, this is how to become a digital marketer. So this is very crucial. I would say we are in a digital era where everybody needs to learn how to become a digital marketer. So before we begin, I would love to introduce Shivam sir, today's the keynote speaker. Mr. Shivam Ahuja is a founder and CEO of Skill Circle, an award-winning edtech platform. Mr. Ahuja has dedicated his last 7 years in building this organization and have seen a massive growth during this period. With his visionary leadership, shaping the future of education and empowering young minds for the demand of the market. Though through the Skill Circle, he aims upskill individuals and make them career ready as a part of current and future demand of the market. In addition to his achievement in the field of entrepreneurship, he is also sought after a public speaker. He has delivered several talks and in very prestigious institutions and platforms for TEDx as well as on the Joe Stocks as well, where he has shared his expertise and knowledge with a wide audience. He is also a podcaster and reaching out even to more individuals, spreading valuable insights on digital marketing. Mr. Ahuja is committed to shaping the future of education and empowering the young minds is commendable. His visionary leadership and dedicated has helped a lot of individuals to move ahead in the digital industry. We encourage the audience to participate in this session and be very active. I'm sure there will be a lot of things which will lined up for you. But in case if you have any queries, anything as such, any doubts you come across, make sure you put it in the Q&A section. Shivam sir will take it at the end of the session. And I'm sure this session is going to be very crucial for every individual, whether you are a student, whether you are working professional, or whether you're working for an edtech company or educationists or academicians, it's going to help you a big way. So Shivam sir, without me wasting much time, I would say over to you, sir. We would love to hear from you. Great. Thank you so much for a warm welcome, Sandeep. And I'm super excited, as I mentioned. And also, thank you to GIBS because of conducting this amazing session. And I was just going through your website. I saw, amazing speakers lineup. Previously you have hosted them and, they have shared their enlightened words with all the audience and all the students, and not the students, all the faculty members as well. Today, it's my turn, and I'm super excited and thrilled to share about the insights, the career avenues, and the future of digital marketing, be it ChatGPT or maybe other, verticals as well. So without wasting a single second, let me start this session, how to become a digital marketer in 2023. All right. I have prepared something for all the students or the faculty members or the stakeholders who are attending this session. And to make it session, worth attending and worth, meaningful, I'll be, make it very conversational tone. So I'll be asking few questions in between the session. I would like everyone to just reply over this in the chat comment box. So I just want your assistance so that people can chat on time to just give them, chat rights so that they can just comment on the chat box. Yes, the Q&A is open. They can put it in the Q&A section. All right, perfect. Let me just share my screen first of all, and let me just share the content that I have prepared for all these people who are here to become a digital marketer. All right, guys, my name is Shivam. I'm a edtech entrepreneur, as Sandeep mentioned. And also I work for a company like Uber, Oyo Rooms, BLS internationally in the last 10 years. And also I got a chance to work for Innovate Co-working.
I was the co-founding member, and later on we sold it to Oyo Rooms for 220 crore rupees. That time I got to know एक startup कैसे बनता है from zero to hero, right? So I learned from there. But today, since session is more about digital marketing, I want to tell I've been a speaker to so many international countries where I represented India, and tell youth about how they can become a digital marketer. Now, talking about the digital marketing industry per se, it's beautiful, it's growing, and I feel there is a huge opportunity which students can leverage. No matter you're a working professional, no matter you're a college student, no matter you want to become a freelancer, this industry open doors for everyone. So today I'll be just keeping the session in mind. अगर आप एक स्टूडेंट भी हैं तब भी आप कुछ कर सकते हैं इस सेशन के थ्रू, or you want to become a businessman, or you want to start your own startup, or maybe want to raise some angel investment, this session for digital marketing is worthy for you. Or there are people who want to work remote. There is a term called laptop lifestyle. If you go to Bali or maybe some other such areas, you'll be able to see a pattern of audience which have a laptop, which have an internet connection, and they're working across the world and enjoying their life on the go. These are people, laptop lifestyle on the go. This is a career of the future. This is a career of the present. So I'd love to highlight some points on the career of future and career of present as well as a freelancer. So let's start it without wasting a time. But before that, I want to share one important thing. What? Today, I'm might be a speaker in front of you. I was not like same, of course, right? If I go back 10 years in my college, this is a photo of my college graduation ceremony, 2012 I'm talking about. I did my graduation from a private university from northern part of India. I had big dreams, right? I want to do something, start a startup, take it to a big level, but I had zero mentorship. I had no idea where to start from. And I'm sure there's so many college students who want to do something, they want to do a side hustle, but they don't have a right sort of mentorship, because internet is something very sometimes it's discouraging as well, because you have abundance of data and there is no streamline of it. So it's amazing, but on the same time you know how to curate the data as well. And also I have high energy. At that time of my college, when I was passing from my college, I got a high energy, though I still having high energy, but that time the level was amazing. So what I feel is the college student have to leverage this kind of energy so that they can make an amazing career out of it. तो मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स या जो ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो अपने करियर में ग्रो करना चाहते हैं, उनके लिए सेशन काफी मीनिंगफुल हो. एंड ऑल्सो अगर मैं अपने करियर ट्रांजिशन की बात करूं, मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूं. I live in east part of Delhi. I used to live in east part of Delhi for almost 10 years. And if I talk about my career growth, 2009 में बहुत कंफ्यूज था, इंजीनियर बनूं या डॉक्टर, बिकॉज और ऑप्शंस कम ही देते हैं हमारे आज. मतलब मेरे पेरेंट्स ने तो बहुत कम ऑप्शन दिए थे. By 2012 I graduated from college. There was an education loan, there's a debt on me, but somehow I just passed the debt because I was able to make some money while I was studying in college. कॉलेज में रहते रहते I was able to make 20,000 rupees a month, and for me that was a big deal. अभी 20,000 रुपए कैसे बनते? There are so many social media platforms, there are so many other platforms जहां से अगर आप digital marketing freelancing करते हो, you can make some money out of it. I'm talking about 2012. That time I used to earn that much money from my kind of online hustle, you can say that. But I work for a company as well. 2012 से लेकर 2014 तक, then I passed my college, I got a campus placement, and the funny thing, the campus placement company came for hiring MBAs. I was not any MBA. I was BTech by profession. I was doing electronics and telecommunication in BTech. But उस placement में मैंने somehow उनका interview crack किया and I got the job. तब मुझे realize हुआ कि college के साथ में आपको skills पे भी बहुत focus करना पड़ता है, because end of the day आपकी college की degree बहुत important है, but बहुत ज़्यादा ये भी important है कि college की degree के साथ में आप क्या skills सीख रहे हो real life में. So that I time got the job and I was happy, but जाने का मौका, बट मैं जब अमेरिका गया, दैट माय फ्लाइट दैट मुझे फ्लोरिडा में कहीं गया एज अ स्पीकर. आई वेंट देयर, बहुत मजा आया. बिजनेस वाले लोग थे, उनके सामने मैंने एक स्पीकिंग सेशन दिया. बट आई मेट दिस गाय इज गैरी वी. इफ यू जस्ट गूगल अबाउट हिज नेम, ही इज द नंबर 1 मार्केटर इन द वर्ल्ड. एंड मुझे मेरे मेंटोर ने एक बात सिखाई थी कि अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो सबसे अच्छे डॉक्टर से सीखो. अगर तुम्हें क्रिकेटर बनना है तो यू नो विराट कोहली कौन है, आपको पता होना चाहिए सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर कौन थे. आपको फुटबॉलर बनना है तो लियोनेल मेसी का नाम पता होना चाहिए. सिमिलरली अगर तुम मार्केटिंग की दुनिया में जा रहे हो तो तुम्हें गैरी वी का नाम पता होना चाहिए. तो आई अर्ज एवरीवन आउट देयर जो आज इस वेबिनार को, इस मास्टर क्लास में घर बैठकर या ऑफिस में बैठकर या कॉलेज में बैठकर, इट्स अमेजिंग. आई एम जस्ट सेइंग इट बिकॉज आई एक्चुअली मीन्ड इट. ही ट्रांसफॉर्म माय लाइफ. बिकॉज जब मैं मिलने गया इनसे अमेरिका न्यूयॉर्क में, मुझे एक वाइब आ गई कि यार
ह्यूज, इस इंडस्ट्री में बहुत डेप्थ है। कोई भी इंसान चाहे वो क्रिएटिव ना भी हो ना, तब भी वो इस इंडस्ट्री में ज्यादा कर सकता है। रीजन बिहाइंड डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। जैसे अगर मैं वर्टिकल्स की बात करूंगा अभी, उसमें सोशल मीडिया है, वेबसाइट डिजाइनिंग है, ORM है, एफिलिएट है, ईमेल है, सबके लिए कुछ ना कुछ है। तो वो एनर्जी, वो वाइब लेकर मैं वापस इंडिया में आया। एंटरप्राइजिंग माइंडसेट पहले से था कि यार कुछ करना है, ये नहीं पता था क्या करना है। तो दैट टाइम आई सेट अप अ कंपनी और मैं लोगों को सिखाने लग गया जो मुझे आता था, बिकॉज कॉलेज के टाइम में आई वाज एबल टू मेक सम मनी आउट ऑफ इट, राइट। दैट टाइम आई स्टार्टेड अ कंपनी एंड फॉर्मली मैं बच्चों को सिखाने लग गया। सिखाने क्या लग गई? डिजिटल मार्केटिंग, हाउ टू मेक करियर आउट ऑफ इंटरनेट। वी वर टीचिंग ऑफलाइन, वी वर टीचिंग ऑनलाइन। बैंगलोर से, मुंबई से, दिल्ली से, हर जगह से बच्चे हमारे साथ में पढ़ने लग गए, क्योंकि ऑनलाइन बूम आ चुका था उस टाइम पर। और धीरे धीरे इट कन्वर्टेड इनटू प्रॉपर बिजनेस प्लान, एंड आई प्राउड टू से दैट टुडे वी हैव a team of around 100 in our company. Our company valuation is approximately 100 crores. We do decent turnover as well, but everything is bootstrap. So we have not raised a single money from any investor out there. किसी शार्क टैंक इन्वेस्टर से किसी से पैसा रेज नहीं किया, बट सब कुछ बूटस्ट्रैप बनाया, बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास। व्हाई आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन? बिकॉज देयर सो मेनी यंग एंटरप्रेन्योर्स जो कंपनी खड़ी करने से पहले सोचते हैं कि मुझे इन्वेस्टर का पैसा चाहिए। ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर में एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपने प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढ लिया है, तो फ्यूचर में आप एंटरप्राइजिंग माइंडसेट के साथ में बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट रही बात जॉब की, जो सोच रहे कि मुझे जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या मैं जॉब कैसे कर सकता हूं, आज इस सेशन में मैं आखिरी में Q&A से पहले आपको ये भी बताऊंगा हाउ टू गेट अ जॉब ऑफ 1 लाख रुपीज और मोर इन कमिंग 16 months, because there are so many verticals under digital marketing जिसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा है। टेक एन एग्जांपल, गूगल इंडिया से इस वक्त 25,000 करोड़ एक साल के कमाता है। बट हमें स्कूल और कॉलेजेस में, आजकल के कॉलेजेस में तो खैर फिर भी शायद सिखाने लग जाया गया हो, गूगल पैसे कैसे अर्न करता है कोई नहीं सिखाता, स्कूल्स में तो कोई नहीं सिखाता। देयर इज अ ह्यूज इंडस्ट्री। एंड इमेजिन, जब बाबा रामदेव के इतने सारे पार्टनर्स हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं, तो गूगल के भी तो डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे। You can become the distributor of Google. I'll tell you how. You can become a Google partner. I'll tell you how. तो इसलिए सेशन को थोड़ा ध्यान से और आखिरी तक अटेंड करना, so that it will become more meaningful. I see so many students जो मास्टर क्लास या ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करते हैं, but they just see it and they just leave it. I want each and student to be with me, to be with all the faculties till end, so that इस सेशन को अटेंड करने के बाद में आप रात में जाके सोचो, यार this is amazing. Now I can make my career in this, like this 1, 2, 3 steps. I want you to take these steps. So let's start it. So first of all, a formal introduction, because Sandeep introduced me very nicely, but I still want you to ensure कि आप मेरे बारे में याद रखें कि मैं क्या करता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम शिवम है। I'm a digital marketing consultant. I consult big brands like BLS International, Uber, Oyo Rooms, Innovate. Also, I'm an angel investor. I invest in young startups. अगर आप में से कोई स्टार्टअप करना चाहता है या कर रहा है और आपको सीड मनी चाहिए 50 लाख रुपए तक, we do have a very good investors जो आपकी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, and we can take a small equity out of it. Apart from that, I'm an entrepreneur and we run a company called Skill Circle. Skill Circle एक edtech कंपनी है जहां पे हम डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग और डिजाइन के कोर्सेज कराते हैं। ये कोर्सेज शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, 3 months, 6 months, 11 months, पैन इंडिया ऑनलाइन होते हैं, और ऑफलाइन हमारी प्रेजेंस अभी दिल्ली में है, लखनऊ में और चंडीगढ़ में। This is the company introduction. But now I am coming to the bits and pieces how you can become a digital marketer in 2023. Let's get started. Okay guys, first of all I want to tell you one amazing thing. कोई भी कंपनी चाहे छोटी हो बड़ी हो, उसे एक ब्रांड बनने के लिए उसे डिजिटल पे आना बहुत जरूरी है। Take an example. I'm carrying a phone. I just bought iPhone 14 Pro Max recently. मैंने इसका कवर बाय किया। अब मैं आपको बताऊंगा, ये कवर अगर आप एप्पल स्टोर से बाय करोगे तो 5,000 रुपए का मिलेगा, बट अगर सेम कवर अगर आप बाहर से लेंगे तो इंपोर्टेड होता है, शायद आपको 1,100 रुपए का मिल जाएगा। बट यू नो व्हाट, जो कंपनी कवर अपना मार्केट कर बेचती है, वो भी कम से कम 100-200 करोड़ का टर्नओवर करती है। हर कंपनी बिजनेस करती है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर हम इस कवर की बात करें, अब ये कवर ऑफलाइन भी मिलता है और ऑनलाइन भी मिलता है। ज्यादा सेल्स कहां से आएंगी? मुझे लगता है ऑनलाइन से आएंगी, क्योंकि आजकल जो ऑनलाइन की रीच है वो बहुत फिनोमिनल है। फिनोमिनल मतलब, अगर आप दिल्ली में बैठकर खरीद रहे हैं कवर, बहुत अच्छी बात है, पर अगर बैंगलोर से, मुंबई से, कलकत्ता से, कहीं से भी खरीदना चाहता है, रीच बहुत अमेजिंग आएगी। तो व्हाई ऑनलाइन इज बूमिंग? फर्स्ट फैक्टर इज रीच। अब गांव तक जा चुकी है रीच, शहरों तक जा चुकी है। आप बैठे बैठे कहीं से भी कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, चाहे उसकी कार्ट वैल्यू 200 रुपए की क्यों ना हो। दैट्स नंबर 1। बट द सेकंड इज अमेजिंग, व्हिच इज माय फेवरेट. Why online is booming comparison to traditional marketing? Second is targeting. Targeting अगर मैं आपको बहुत easy words में बताऊं, take an example.
आज का सेशन आपने अटेंड किया है हाउ टू मेक अ करियर इन डिजिटल मार्केटिंग और बिकम अ डिजिटल मार्केटर। आज का सेशन अटेंड करने के बाद में घर वापस जाएंगे ना और दोबारा से यूट्यूब खोलेंगे या फेसबुक खोलेंगे, आपको हर जगह डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की ऐड दिखेगी। दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग। मतलब मैं आज यहाँ पर चंडीगढ़ कुछ काम से आ रहा था, मैंने कुछ सर्च किया, मुझे वो ऐड दिखने लग गई। अब ये बहुत नॉर्मल सी चीज लगेगी आपको, ठीक है ये ऐड ही तो दिख रही है। नो, इट्स अ मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस। तो अगर आपने ये समझ लिया कि टारगेटिंग कैसे की जाती है, कैसे इसमें सारी की सारी चीजें काम करती हैं, इफ यू एबल टू लर्न इट, यू कैन एश्योर करियर टू बी डिजिटल एडवर्टाइजिंग और डिजिटल मार्केटिंग। तो आई वांट टू टीच यू दिस थिंग प्रैक्टिकल टुडे, so I want you be with me for the next 10 to 15 minutes. Okay, and the price and ROI is amazing. अगर आप कभी मेट्रो में आपने ट्रैवल किया है, दिल्ली में या बैंगलोर में या कहीं भी, तो आपने देखा होगा मेट्रो में बहुत महंगी महंगी एडवर्टाइजमेंट लगती है, या बिलबोर्ड। बहुत जब हम सड़कों पे जाते हैं, हाईवेज पे जाते हैं, बहुत बड़े बड़े बिलबोर्ड होते हैं। आपको पता है एक बिलबोर्ड 3 से 5 लाख रुपए चार्ज करता है एक एड दिखाने के, दैट टू ऑफलाइन थिंग। बट जितनी भी ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग थी, धीरे धीरे ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है, बिकॉज ऑनलाइन में पैसे बहुत कम है। अगर मुझे अपनी ब्रांड को एडवर्टाइज करना है फेसबुक में, से फॉर इन बैंगलोर, तो 500 रुपए से मैं बैंगलोर में खर्च करके अपनी एडवर्टाइज कर सकता हूं अपनी कंपनी को। नॉट जस्ट ब्रांडिंग, मैं वहां से अपने कस्टमर्स भी एक्वायर कर सकता हूं। दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट डिजिटल एडवर्टाइजिंग। तो आज मैं अपना जो टॉपिक है कि बहुत सारी चीजें डिजिटल में, एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ईमेल है, एफिलिएट है, मोबाइल एप्स है, ब्लॉगिंग है, वीडियो ब्लॉग, देयर अबंडेंस ऑफ टॉपिक्स अंडर डिजिटल मार्केटिंग। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, दिस इज नॉट समथिंग आई रेकमेंड टू। आप सब थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, लेकिन एक चीज में मास्टर तो बनना पड़ेगा। आज जो मैं टॉपिक है स्पेसिफिकली एडवर्टाइजिंग की तरफ लेकर जाऊंगा या पीपीसी की तरफ लेकर जाऊंगा, दैट इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग। और फ्यूचर में भी हम जीआईबीएस के साथ में और सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे। आई लव टू शेयर मोर इनसाइट मे बी ऑन एसईओ, सोशल मीडिया समडे, बट टुडे सेशन आई विल बी जस्ट फोकसिंग ऑन एडवर्टाइजिंग, दैट टू परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ये बहुत बूमिंग इंडस्ट्री है। अगर आप गूगल का रेवेन्यू चेक करोगे, इंडिया का पिछले साल का 15,000 करोड़ था, इस साल का 25,000 करोड़ है, प्रोजेक्टेड अगले साल का 36,000 करोड़ है। दैट्स इनसेन अमाउंट ऑफ मनी गूगल इज मेकिंग फ्रॉम इंडिया। इट्स लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी। रिमेंबर जब ब्रिटिशर्स आए थे हमारे देश में, वो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी उन्होंने मसाला का व्यापार करने के लिए, और धीरे 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 सारा पैसा लेकर ले गए थे ब्रिटिश में, राइट? सिमिलरली गूगल उस तरह से बन गया इतना बड़ा कि वो इंडिया से इतना पैसा कमा रहा है, बट देयर इज नो सेकंड कॉम्पिटिटर इन इंडिया ऑफ गूगल। सेकंड छोड़ो, 10th कॉम्पिटिटर भी नहीं। गूगल इज बिग, ह्यूज। आज जितनी भी हम चीजें सर्च करते हैं, चाहे वो प्ले स्टोर है चाहे कुछ भी हो, गूगल की डोमिनेंस बहुत बड़ी है। बट हम पैसा बना सकते हैं। यू कैन बिकम अ गूगल पार्टनर। अगर हम गूगल को किल नहीं कर सकते, डेफिनेटली गूगल के साथ में पार्टनर कर सकते हैं। पार्टनर कैसे कर सकते हैं, बट उसके लिए समझना पड़ेगा फ्रेमवर्क। तो मैं आपको लाइव सर्च इंजन ओपन करके दिखा रहा हूं, दैट टू ऑन माई स्क्रीन। आई होप संदीप जी, जब मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊं तो आप प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिए कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। संदीप जी, आर यू एबल टू सी दैट? यस यस। ओके, परफेक्ट। मैं कुछ चीजें लाइव सर्च करने वाला हूं गूगल पे। आप इस लाइव केस स्टडी को समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और इसमें क्या क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली में मैं एक नॉर्थ दिल्ली एक जगह वहां पे रहता हूं, बट अगर नॉर्थ दिल्ली से 15-20 किलोमीटर दूर जाएंगे नोएडा में, वो काफी फेमस एरिया है। द रीजन बीइंग इज वहां पे रियल एस्टेट बहुत है। तो अगर मैं गूगल पे जाके सर्च करूं से फॉर फ्लैट इन नोएडा, देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ बिल्डर्स आउट देयर जो इन फ्लैट्स को बेचते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी एड्स आ रही है, नो ब्रोकर और मे बी 99 एकर्स और फ्यूजन ब्रॉक, ऐसे बहुत सारे हैं। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया फ्लैट इन बाय अंडर 50 लाख रुपीस। मैंने गूगल को एग्जैक्ट क्वेरी दे दी कि मुझे खरीदना है, मुझे रेंट पे नहीं चाहिए। अभी तक नो ब्रोकर दिखा रहे थे बिकॉज नो ब्रोकर रेंट पे देता। तो मैंने गूगल को बताया, गूगल आई वांट टू बाय अ फ्लैट अंडर 50 लाख रुपीस। द मोमेंट आई डिड दैट, अब आप यहाँ पर देखोगे बिल्डर्स के भी कहीं ऐड आ गई। तो नंबर 1 पर आ रहा है यहाँ पर fusionbrook.com। अगर मैंने इस एड पर क्लिक कर दिया, इनके करीबन 100 रुपए कट जाएंगे। दैट्स अ परफॉर्मेंस बेस्ड एडवर्टाइजिंग। हम इसको पीपी भी बोलते हैं, गूगल एड्स भी बोलते हैं। ये बात नॉर्मल सी है लेकिन डीप बहुत है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूं बेस्ट लैपटॉप अंडर 1 लाख रुपीस, देखिए वैसे तो मैं बचपन से एचपी और डेल के लैपटॉप यूज किए, बट जब मैं मैकबुक पे स्विच हुआ तो मुझे लगा यार मैकबुक बहुत फास्ट मशीन है और काफी अच्छी है। सिमिलरली अगर मैं गूगल पे सर्च करूंगा बेस्ट लैपटॉप अंडर 1 लाख रुपीस, तो यहाँ पर देखो बहुत सारी एड्स आ रही है। डेल की भी आ रही है, सैमसंग की एड आ रही है। सैमसंग हालांकि लैपटॉप कैटेगरी में कहीं भी नहीं है, बट यहाँ पे सैमसंग भी आ रहा है। हर कंपनी अपनी एड चला रही है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे सर्च करूं बेस्ट बेस्ट कार अंडर, या बेस्ट कार सर्च करते हैं, बेस्ट कार इन इंडिया, आई जस्ट सर्च इट। Now there are so many cars, right? And there is a car company called Carvali. It's coming. It's a marketplace, right?
अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बाय ऑडी, दैट्स अ प्रीमियम कार, राइट? आई जस्ट सर्च बाय ऑडी। जैसे मैंने सर्च किया तो यहाँ पे ऑडी की ऐड आने, ऑडी की ऐड आने लगे। अब मैं आपको ये चीज ये क्यों समझा रहा हूँ, बिकॉज आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं एक नॉर्मल सी भी सर्च करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई सर्च बाय फ्लैट इन नोएडा। अब नोएडा में करीबन 1000 से ज्यादा बिल्डर हैं। यहां पर नंबर 1 पर आ रहा है पैरामाउंट ग्रुप डॉट इन। देयर इज अ कंपनी कॉल्ड पैरामाउंट ग्रुप डॉट को डॉट इन, इट्स अ बिल्डर। ये नंबर 1 पे आ रहा है। ऐसा नहीं ये सबसे अच्छा है। लोगों को लगता है हमने गूगल पे सर्च किया है तो जो टॉप पे आएगा वो सबसे अच्छा। मैंने सर्च किया बेस्ट एमबीए कॉलेज, जो टॉप पर आएगा वो सबसे अच्छा। दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। गूगल पर नंबर बनाने का सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आप एड चलाना जानते हैं तो आप गूगल पे टॉप पे आ सकते हैं, प्रोवाइडेड आपकी जो लैंडिंग पेज है वो भी अप टू डेट हो, स्पीड अप टू डेट हो और आपको पैसा खर्च करना आता हो। अगर मैंने इस एड पर क्लिक कर दिया तो पैरामाउंट ग्रुप के अकाउंट से 100 रुपए कट के गूगल को चले जाएंगे। ये नॉर्मल सी चीज है जिसको हम पीपीसी बोलते हैं। तो आई एम जस्ट क्लिकिंग इट ऑन द फेस राइट नाउ बिकॉज मुझे बच्चों को समझाना है, तो आई एम जस्ट डूइंग इट राइट नाउ। द मोमेंट आई क्लिक इट, 100 रुपीज डिडक्टेड एंड इट गोज टू गूगल। अब बात आती है 100 रुपए ही क्यों कटे, 50 क्यों नहीं कटे, 40 क्यों नहीं कटे, 10 क्यों नहीं कटे? कौन डिसाइड करेगा कितना कटेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल डिसाइड करेगा कितना पैसा कटेगा। सेकंड, 100 ही क्यों कटे? बिकॉज इस कीवर्ड का प्राइस 100 रुपए रखा है गूगल ने। अगर मैं सर्च करूंगा बेस्ट लैपटॉप तो हो सकता है इस कीवर्ड का प्राइस 10 रुपीज होगा। अगर मैं सर्च करूंगा बेस्ट कवर फॉर मोबाइल फोन, इस कीवर्ड का प्राइस होगा 5 रुपए। जितनी सस्ती चीज होगी उस कीवर्ड का प्राइस काफी सस्ता होगा, जितनी महंगी चीज होगी उस कीवर्ड का महंगा प्राइस होगा। मैं सर्च करूंगा बाय डायमंड्स ऑनलाइन, हो सकता है इस कीवर्ड का प्राइस 200 रुपीज हो। तो एज पर द कीवर्ड सर्च देयर विल बी अ प्राइस एंड ये डिसाइड करेंगे गूगल। ओके, आई बिलीव यहां तक की चीजें ओके हैं, बट अब थोड़ा हम एडवांस लेवल पे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम श्योर अगर आपने ये समझ लिया ना, आप नौकरी छोड़ो, आप बिजनेस को समझ जाओगे, बिजनेस काम कैसे करता है। तो अगर आप देखो, जैसे मैंने पैरामाउंट ग्रुप की वेबसाइट पे क्लिक किया, एड पर क्लिक किया, तो ये कुछ पेज खुलकर आ गया। अगर आप ध्यान से देखिए, नॉर्मल पेज नहीं है। आपको लगेगा तो नॉर्मल सी वेबसाइट खुल गई, नहीं, इट्स अ लैंडिंग पेज। अब लैंडिंग पेज एक नॉर्मल वेबसाइट से थोड़ा सा अलग होता है। दैट मींस अगर मैं मेन्यू बार में कहीं भी क्लिक करूंगा, सिर्फ फ्लोर प्लान, ये मुझे नीचे लेकर आ रहा है, प्राइस लिस्ट नीचे लेकर आ रहा है, गैलरी, एक ही पेज पे ऊपर नीचे जा रहे हैं, कुछ अलग से नया पेज नहीं खुल रहा, ताकि यूजर डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। लैंडिंग पेज का जो की एट्रीब्यूट है वो सिंपल सा है कि यूजर अगर इस पेज पर आएगा ना, अपना डेटा देकर जाएगा। तो टेक्निकली गूगल वांट्स योर डेटा, नॉट गूगल, पैरामाउंट ग्रुप वांट्स योर डेटा सो दैट दे कैन कन्वर्ट यू इनटू अ कस्टमर। अब याद करो, आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो, सबसे पहले आपसे क्या मांगा जाता है? ये फ्री ई बुक ले लो, अपना ईमेल आईडी दे दो, ये आप ये चीज ले लो, मुझे अपना नंबर दे दो। एवरी कंपनी इज चेजिंग योर नेम, ईमेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर, एज सिंपल एज दैट। सिमिलरली पैरामाउंट ग्रुप, बिकॉज इन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया था और अभी तक इनके 100 रुपए कट चुके हैं। अब द थिंग इज, 100 रुपए तो कट गए और मैं इनकी लैंडिंग पेज पर भी आ गया। अब हो सकता है मैं डेटा दूं या ना दूं। जैसे ये बोल रहे हैं रिक्वेस्ट कॉल बैक, अगर आप चाहते हैं पैरामाउंट ग्रुप का फ्लैट लेना तो अपना प्लीज फॉर्म भर दीजिए, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। अब देखो, अगर मैं सीरियस बायर हूंगा, मुझे चाहिए एक्चुअल में फ्लैट, तो मैं फॉर्म भी भरूंगा। और जब गूगल पे सर्च किया तो कहीं ना कहीं मैं सीरियस भी होऊंगा। अब बात आती है, एक दिन में एक क्लिक नहीं होगा, एक दिन में बहुत सारे क्लिक्स हो जाएंगे। उस एडवर्टाइजमेंट पर एक क्लिक थोड़ी होगा, मेरे हिसाब से एक दिन में 1000 से ज्यादा क्लिक्स हो जाएंगे, प्रोवाइडेड वो कीवर्ड हाई सर्च कीवर्ड है। अब मान के चलते हैं नोएडा में तो बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी ढूंढते हैं, अगर यही चीज पटियाला होती, पंजाब में एक जगह पटियाला, शायद वहां पे ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं सर्च करते। अगर हम सर्च करते बेस्ट प्रॉपर्टी इन पटियाला तो हो सकता है वहां पे एड भी ना चल रही होती। नोएडा इज अ हॉट सेक्टर, दैट्स व्हाई एवरीवन इज शोइंग एड। नाउ अब थोड़ा सा मैथ समझते हैं, एंड आई एम श्योर सब लोग यहाँ पे, काफी सारे लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, बिकॉज हमारे पास में बहुत सारे ऐसे बच्चे अभी जो 12th पास भी हैं, बट जो भी मैं मैथ समझाऊंगा ये सबको समझ में आ जाएगा। तो लेट मी जस्ट ओपन व्हाइट बोर्ड सो दैट मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन समझा पाऊं, ताकि ये कैलकुलेशन समझ के आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हाउ गूगल इज सो बिग एंड हाउ यू कैन मेक योर ब्रांड सो बिग विद गूगल। तो अगर आप सामने व्हाइट बोर्ड देखेंगे, आई एम जस्ट पुटिंग समथिंग ऑन व्हाइट बोर्ड, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। मैंने सामने जो टॉपिक है वो मैंने लिख दिया है। जो टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं वो गूगल एड्स है, दैट्स गूगल एड्स फॉर यू। सो दैट्स गूगल एड्स। इसको हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी बोलते हैं। तो आज के बाद में अगर कोई बोले देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी परफॉर्मेंस मार्केटिंग, तो आप समझ जाओ वो एडवर्टाइजिंग को बोल रहा है। इसको हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग बोलते हैं। परफॉर्मेंस मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि जो परफॉर्मेंस के बेसिस पे मार्केटिंग हो रही है। जैसे अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग को देखो तो मेजर नहीं कर सकते। जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब 4 रील्स बना दो, बट देयर इज नो गारंटी कि उस रील से बिजनेस आएगा। आपको व्यूज मिल सकते हैं, वो भी गारंटीड नहीं है, वो एल्गोरिथम के ऊपर में डिपेंडेंट है। यू नो, मार्क जुकरबर्ग को आपका रील कैसा लगा, दैट टू इज लाइक दैट। बट परफॉर्मेंस मार्केटिंग का मतलब है कि अगर मैं 100 रुपए खर्च करूंगा
गूगल मुझे सम सॉर्ट ऑफ गारंटी दे रहा है कि 100 का इतना रिटर्न आ सकता है। ये इंटरेस्टिंग है एंड दैट्स सो ह्यूज। मतलब अगर आप मामा अर्थ का आईपीओ देखो, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड मामा अर्थ, उन्होंने अपने आईपीओ से करीबन 500-600 करोड़ रुपए रेस किया था, और उस आईपीओ में देखो तो उन्होंने लिखा हुआ था 500 करोड़ में से हम 250 करोड़ रुपए परफॉर्मेंस मार्केटिंग में खर्च करेंगे। दैट्स सो ह्यूज इंडस्ट्री। सोचो एक कंपनी जो इतना बड़ा ब्रांड बनाया है उसमें से 200 करोड़ परफॉर्मेंस मार्केटिंग में खर्च करे, बिग डील आउट देयर। तो इसलिए बड़ी इंडस्ट्री है और बड़ी से लेकर छोटी कंपनी सब लोग इसमें अपने कैंपेन्स वगैरह चलाते हैं। तो इसलिए हम इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे, लेकिन अभी डेप्थ की जगह पहले हम समझेंगे जो मैंने आपको अभी कैंपेन दिखाया उसको हम बेसिक लेवल पे यूनिट इकोनॉमिक्स वाइज समझते हैं। अगर आपने ये समझ लिया तो आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे, इतना मुश्किल नहीं लगेगा। डिजिटल होता कि ना, हम डिजिटल मार्केटिंग को, मतलब मुझे याद है मैं जब मैं 12वीं क्लास में था, रेस्निक हैलिडे एक बुक हुआ करती थी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें आईआईटी में जाना था। रेस्निक हैलिडे इतनी मोटी बुक थी ना, ट्रस्ट मी संदीप, उस बुक की वजह से ना मैंने अपना इंजीनियरिंग करियर छोड़ दिया कि मुझे नहीं बनना यार इंजीनियर, इतनी टफ बुक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कंसेप्ट इतने इजी होते हैं बट उन्हें मुश्किल बना दिया जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सिमिलरली परफॉर्मेंस मार्केटिंग इतना मुश्किल नहीं है, लोग डरते हैं यार ये एड क्लिक पैसा कैलकुलेशन बड़ा टफ है। इट्स नॉट। अगर आपने यूनिट इकोनॉमिक्स समझ ली तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, जमा घटा करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। सामने स्क्रीन पर देखो, तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि भाई एक क्लिक, अगर एक क्लिक होता है गूगल की एड पर तो उस कंपनी के 100 रुपए कट जाएंगे। दैट मींस पैरामाउंट जो ग्रुप है, पैरामाउंट जो रियल एस्टेट ग्रुप है, उसके 100 रुपीज एक क्लिक पे चले जाएंगे। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि बच्चों को दिखाई दे। आई एम श्योर अब दिखाई दे रहा होगा। एक क्लिक के 100 रुपए गए। मैं रिपीट करता हूं, ये 100 से कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, डिसाइड करेंगे गूगल। और हो सकता है दिसंबर में अलग रेट होगा, जनवरी में अलग रेट होगा, जुलाई में अलग रेट होगा। रीजन, दिसंबर जनवरी में हो सकता है ज्यादा बिल्डर्स ऐड चला रहे हो, जुलाई में कम लोग ऐड चला रहे हो। जब ज्यादा लोग चलाएंगे तो प्राइस गूगल बढ़ा देगा, एज सिंपल एज दैट। अब ये सोचने की बात है कि एक दिन में एक क्लिक नहीं होगा, बहुत सारे क्लिक्स होंगे। पहली बात, जिस बिल्डर पे ज्यादा पैसा वो ज्यादा एडवर्टाइजिंग कर पाएगा। दूसरा, कहीं ना कहीं लोग सर्च कर रहे हैं बेस्ट बिल्डर, बेस्ट फ्लैट, फ्लैट अंडर 50 लाख, फ्लैट विद अ गार्डन व्यू, फ्लैट विद जकूजी, देयर सो मेनी सर्चेस आर हैपनिंग। मैं मान के चलता हूं मरे से मरा बुरे से बुरा 100 क्लिक्स तो हो जाएंगे। लेट इट बी, लेट्स जस्ट एज्यूमिंग इट टू बी राइट। अगर 100 क्लिक्स भी हो जाते हैं तो पैरामाउंट के पैसे कटेंगे लगभग 10,000 रुपए। तो जो पैसे कटेंगे वो 10,000 रुपए हुए। तो टेक्निकली 10,000 रुपए एक दिन में पैरामाउंट के ग्रुप के पैसे कट गए और ये पैसा गूगल के पास में गया। नाउ यू कैन इमेजिन गूगल कितना पैसा कमाता होगा। ये तो रियल एस्टेट है, बीट एनी कोर्स, बीट एनी कॉलेज, बीट एनी लैपटॉप, बीट एनीथिंग आउट देयर। कोई ना कोई गूगल पे सर्च करता है, ऐड दिखता है, क्लिक करते हैं, गूगल की कमाई हो जाती है। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, नाउ सी द मैजिक, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब देखो पैरामाउंट ग्रुप भी बेवकूफ नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कोई भी बिजनेसमैन बेवकूफ नहीं होता, उसे इतनी समझ होती है कि यार अगर हम 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, कम से कम 200 का तो रिटर्न आना चाहिए। अगर हम 100 करोड़ डाल रहे हैं तो 200 आना चाहिए। टेक एन एग्जांपल अपने धीरू भाई अंबानी जी को ले लीजिए। बहुत सारे लोगों ने बोला यार तुम 25,000 करोड़ आईपीएल में डाल रहे हो, तुम कर क्या रहे हो, और जियो तुम फ्री में दे रहे हो। आपने देखा होगा जियो ने आईपीएल फ्री में दिखाया है, कोई पैसा थोड़ी चार्ज किया है। इनफैक्ट अगर जो लोग आईपीएल देखते हैं उन्हें पता होगा लॉग इन करने की भी जरूरत नहीं थी, सीधा जियो के मैचेस स्टार्ट हो जाते थे। बट आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, जब 25,000 लोग अपने मोबाइल आईडी से आईपीएल देख रहे हैं, जियो उनको टारगेट करके अपने सिम कार्ड बेचेगा, और सिम कार्ड बेचने के बाद उनका जो मोबाइल फोन का रेवेन्यू है वो अगले साल डबल ट्रिपल भी हो सकता है। यू नो द जियो स्ट्रैटेजी राइट। तो इसीलिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और बिजनेसमैन स्मार्ट होते हैं कहीं ना कहीं। तो पैरामाउंट अगर 100 रुपए खर्च कर रहा है ना, उसको पता है 100 का 200 कैसे करना है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा मैच बताऊं जो मुझे लगता है पैरामाउंट का ऐसा मैच होगा, आई एम नॉट श्योर कि इतना राइट होगा इतना रॉन्ग होगा, बट एक एजम्पशन मान के चल रहे हैं कि इतना होगा। तो अगर 100 क्लिक्स होते हैं तो पहले हम समझते हैं कि 100 में से कितने लोग उनका फॉर्म फिल करेंगे। तो यहाँ पर एक फॉर्म दिख रहा है जहां पे नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर मांगा जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 100 में से 25-30 लोग भर देंगे। रीजन बीइंग दे आर सीरियस बायर, उन्होंने खुद गूगल पे जाके सर्च किया है। ऐसा नहीं कि पैरामाउंट उनके पास में गया था, वो पैरामाउंट के पास में आया। इट्स अ वेरी डिफरेंट पुश एंड पुल स्ट्रैटेजी राइट। तो पैरामाउंट ने पुश नहीं किया, पुल किया, लोग खुद गए हैं और अपना डेटा देकर आए हैं। तो मुझे लगता है 25 लोग तो फॉर्म भर देंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा जो क्वेरीज हुई वो करीबन 25 के आसपास हुई। ये मैं कम मान के चल रहा हूं क्योंकि बिजनेस का एक सिंपल सा फंडा है, अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी। अभी मैं कम मान के चल रहा हूं, ज्यादा आएगा वो बोनस है राइट। तो मैंने क्वेरीज मानी यहां पर 25। अब देखो 25 क्वेरीज कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, एक दिन में 100 क्लिक्स होते तो 25 आ जाएगा। बट नाउ द मैजिक हैपेंस। आई डोंट नो आप में से किसी ने रियल एस्टेट का कोई प्रोजेक्ट बाय किया या नहीं किया। आपको पता होगा अगर आपने कहीं नंबर दे दिया तो आपको लंच बुलाएंगे, डिनर पे बुलाएंगे, सब कुछ देंगे कि अपनी वाइफ के साथ में आ जाओ, अपनी मम्मी के साथ में आ, ये प्रॉपर्टी देखो, मैं आपको पोजेशन दे दूंगा दिवाली तक। मैं आपको एक काम करता हूं, अगर आज आ गए या फ्राइडे से पहले आ गए 2 लाख रुपए विवर करा दूंगा।
बात लाखों में हो रही होती है, राइट? तो कहीं ना कहीं आपको सेलिंग की जाती है, ऑफर्स दिए जाते हैं ताकि उनके कस्टमर बन जाएं। और एक बहुत बड़ा स्लोगन चल रहा है, सबका सपना अपना घर हो अपना। तो इसको कहीं ना कहीं मार्केट किया जा रहा है, राइट? तो टेक्निकली अगर हम देखें यहाँ पर सामने स्क्रीन पर, अब हम एजम्पशन मान के चलते हैं, अगर 25 लोगों ने अपनी इंक्वायरी की है और प्रोवाइडेड द कंपनी स्मार्ट, कंपनीज रेरा है, उसकी लीगैलिटी सब अच्छे हैं, प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, 25 में से कितने लोग एक्चुअली कन्वर्ट होंगे? अगर हम फ्लैट का प्राइस मान के चले 50 लाख रुपए, विच इज अ फेयरली लाइक कप केक प्राइस, क्योंकि नोएडा में 50 लाख का फ्लैट मिलेगा नहीं, अगर मिल रहा है तो आपको बहुत जल्दी बिक जाएगा। तो 25 में से कितने फ्लैट एक्चुअल में बिकेंगे, मैं इसकी बात करता हूँ। देखो, अगर मैं ऑडियंस से अभी लाइव पूछता ना, आई एम श्योर सब बोलते 2 3 4 5। जीरो इज द रॉन्ग आंसर। व्हाई? बिकॉज जीरो नहीं होगा कुछ तो बिका। तो लेट्स एज्यूम, मैं बोलता हूं बुरे से बुरा मरे से मरा इज 10%। 25 का 10% 2.5 होता है। मैं बोलता हूं 2.5 भी नहीं, जस्ट 1। मैं मान के चलता हूं सेल हुई सिर्फ 1। ठीक है दोस्तों, मैं बहुत लोअर नंबर लेकर चल रहा हूं, इससे लोअर कुछ नहीं हो सकता। एक्चुअल नंबर 10% के आसपास होता है। अगर 25 इंक्वायरीज आई है तो 2.5 मतलब 2 तो कन्वर्ट हो जाएंगे, 3 तो कन्वर्ट हो जाएंगे। मैं मान के चल रहा हूं 1 अगर हो जाती है तो रेवेन्यू हमारा बना, मतलब पैरामाउंट ग्रुप का बना, लेट्स से 50 लाख रुपीस। दोस्तों इस बात को समझो, अगर पैसे खर्च हुए एक दिन में 10,000 रुपए और रेवेन्यू बना 50 लाख रुपए का, अब रेवेन्यू में कुछ प्रॉफिट मार्जिन भी होंगे, लेट्स से 10% प्रॉफिट, लेट्स से 5 लाख का प्रॉफिट 50 लाख में, 10,000 रुपए खर्च कर अगर 5 लाख रुपए बनाए जा सकते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल बिजनेस आउट देयर। लेकिन इसके पीछे जो कैंपेन वाले लोग हैं, जिन्हें एडवर्टाइजिंग आती है, दे आर हाई पेइंग पीपल। आप वो बन सकते हो। आप अभी कैंपेन अगर चलाना जान गए ना, आप किसी भी बिजनेस को 2 का 4 कर सकते हो। 2 का 4 छोड़ो, 3 तो कर ही सकते हो, राइट? तो हाइपोथेटिकल नंबर है, हो सकता है सेल 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, मैं नहीं बोल सकता कुछ। बट व्हाट इफ आई शो यू माय नंबर्स, बिकॉज आई एम आल्सो परफॉर्मेंस मार्केटर, आई एम स्पेंडिंग several lakh of rupees every month from the last 10 years, and I have no problem sharing the data with you guys, because मैं आपको स्टूडेंट समझता हूं, एंड आई एम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। एंड आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप ऐसे लोगों से मिलो, द पीपल हु हैव बीन देयर, डन दैट। बिकॉज बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो आपको बातें तो बता सकते हैं, बट आई रिस्पेक्ट दोज पीपल जो अपने नंबर शो करें, जो अपनी अचीवमेंट शो करें, जिससे आप एक्चुअल में नॉट जस्ट इंस्पायर हो, आप एक्शन भी ले पाओ। द गुड थिंग इज आई एम इन अ पोजीशन राइट नाउ कि मैं आपको अपने नंबर्स दिखा सकूं, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू शेयर माय नंबर्स। If you just allow me, I can share my numbers, right? Please. Perfect. Seems like there are so many people who are excited. For that, I need to log in on my Google Ads account. Now, if you see, this is the official website of Google. This is not my or other website out there. किसी भी दुनिया में किसी को भी अगर Google पर ad चलाना है तो इसी तरीके से चलाएगा। तो I just log into my Google Ads account. Google Ads account. अगर ध्यान से देखो, Google is incentivizing the people. Google कह रहा है तुम अपना अकाउंट बनाओ, 20,000 रुपए मेरे से लो। वेरी इंटरेस्टिंग। अगर ऊपर ब्लू कलर का टिकर देखो, Google सबको बोल रहा है कि तुम अपना अकाउंट बनाओ, 20,000 रुपए का एड क्रेडिट्स मैं आपको फ्री में दूंगा। बिग डील आउट देयर, काफी बड़ी बात है। बट एनीवे, मैंने तो ये ऑलरेडी लिया हुआ है, तो मैं अभी साइन इन करता हूँ, और साइन इन करके मैं आपको कुछ डेटा दिखाने वाला हूँ, विच आई एम रियली सी कि स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए ऐसा कुछ होता है। तो इफ आई जस्ट क्लिक ऑन दिस, ये जो पैनल आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं गूगल एड्स डैशबोर्ड या परफॉर्मेंस मार्केटिंग डैशबोर्ड। ये गूगल का ऑफिशियल डैशबोर्ड है मेरी कंपनी के लिए, मेरे अकाउंट के लिए। आई एम अ टेक एंटरप्रेन्योर, मेरी एक एजुकेशन कंपनी है, ये उसके लिए मेरा पूरा पूरा डैशबोर्ड गूगल ने बना कर दिया है। तो अगर मैं एक ओवरव्यू में लेकर जाता हूं और यहाँ पर एक काम करता हूं, कल की डेट डालता हूं, येस्टरडे। तो कल 15 मई थी, एंड ट्रैवलिंग एंटायर डे, मतलब मैं दिल्ली से चंडीगढ़ कुछ काम से आया हुआ था। बट अगर आप यहाँ पे नंबर्स देखो, 15 मई, yesterday I spent 38,000 rupees, approximately 38,000 rupees on Google. For what services, what keywords, I will show you. But मोटा मोटा आप समझो कि मैंने 38,000 रुपए गूगल पे एक दिन में खर्च किया, which is fairly a nice number for any emerging company out there, right? And ये कम पैसा मेरा खुद का है, किसी इन्वेस्टर का नहीं। तो इट्स माय अर्न मनी। मैं डेली बेसिस पे मॉनिटर करता हूँ, आज कितना कटा, आज कितना कटा। इट्स दैट काइंड ऑफ इमोशन, राइट? बट इतना पैसा खर्च कर कर मेरी ऐप पर 654 क्लिक्स हुए। तो इफ यू ऑब्जर्व द ब्लू कलर नंबर, 654, आई एम बैड इन हिंदी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लगभग 650 क्लिक्स हुए मेरी एड पर। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बट अगर 650 क्लिक्स हुए तो डेफिनेटली हर कोई तो मेरा कस्टमर नहीं बनेगा। फॉर्म भरा सिर्फ 62 लोगों ने। अगर आप देखो येलो कलर में नंबर आ रहा है, कन्वर्जन, दैट मींस दीस आर दोस पीपल हु वांट टू से दैट
कि मैं ये कोर्स करना चाहता हूँ। ये ऐड किस चीज की थी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ नीचे जाकर, तो आपको वो कीवर्ड मिल जाएंगे जिसके बेसिस पर ये ऐड ट्रिगर हुई है। तो अगर आप देखो ये सारे कीवर्ड्स हैं जिसपे ये ऐड ट्रिगर हुई है। यहाँ पे सर्चेस लिखा आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, बेस्ट कॉलेज फॉर डिजिटल मार्केटिंग। दीज आर द कीवर्ड्स व्हिच पीपल आर सर्चिंग, राइट? सिंस इट्स अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग, मैं इन कीवर्ड्स पर ऐड चलाता हूं। इंडिया में सारे लोग जो भी सर्च करते हैं हम उनको टारगेट करते हैं, वो मेरी ऐड पर क्लिक करते हैं, मेरा पैसा कटता है, फ्यूचर में वो मेरा कोर्स भी बाय कर सकते हैं। नाउ नाउ सी द मैजिक, ये एक दिन के नंबर्स है, राइट? नाउ 62 पीपल आर हॉट लीड्स, इन्हें इंटरनेट में बोलते हैं हॉट लीड्स। हॉट लीड्स का मतलब है ये वो लोग हैं जो मेरे कस्टमर्स बन सकते हैं, पूरी गारंटी नहीं है बट बन सकते हैं। ये एक दिन का डेटा था। नाउ आई एम जस्ट गोइंग हियर अगेन, आई एम जस्ट शोइंग द डेटा ऑफ लास्ट 30 डेज। द मोमेंट आई क्लिक, अप्रैल 16 से लेकर 15 मई तक का डेटा आ गया, and the entire amount I'm spending is 7,91,000. I repeat my words. I'm a bootstrap entrepreneur. I'm spending 8 lakh rupees on Google. Imagine the Oyo and the Ola of the world. एक दिन में 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख रुपए खर्च करते हैं। इंडस्ट्री वेयर इट्स गोइंग, दिस इज बिग इंडस्ट्री। अच्छी बात यह है कि मैं यहाँ पर जो सर्विसेज बेच रहा हूँ वो मोस्टली ऑनलाइन है। ऐसा नहीं है कि मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ या फिर कुछ इस लाइन, हालांकि हमारी ऑफलाइन ट्रेनिंग होती है बट ऑनलाइन भी मोस्टली होती है। बट आप बैठे बैठे कैनेडियन कंपनीज के लिए कैंपेन चला सकते हैं। इसके लिए कहीं कनाडा में ऑफिस जाना या कनाडा में जॉब करना जरूरी नहीं है। आप बैठे बैठे उस कनाडा कंपनी के फ्रीलांसर बनके उनके कैंपेन्स को मॉनिटर कर सकते हैं। यू कैन मेक अ गुड मनी आउट ऑफ इट, अर्न्स इन डॉलर्स, दैट्स ब्यूटीफुल, राइट? अगर मैं अपने नंबर्स की बात करूं, ऑफ कोर्स ये प्रॉफिटेबल होगा तभी तो मैं रन कर पा रहा हूं, क्योंकि अगर ये प्रॉफिटेबल ना होता तो मैं एक दिन चलाऊंगा, एक हफ्ता चलाऊंगा, एक महीना चलाऊंगा। पर अगर मैं अपना एड स्पेंड दिखाऊं सिर्फ और 1 जनवरी से लेकर अभी तक, लेट्स से दिस ईयर अप्रैल जनवरी 2023 से लेकर अभी तक, let's check it out, the ad spend, total ad spend I have done that. So till 15th May. Okay, this is the number which I have done this year. Let me just go down. Okay, that's the ad spend. Now I just apply filter. Okay, I just apply. Now if you see the numbers again, it's 35 lakh rupees, January, February, March, April, right? And the May is going. So I've spent almost 35 lakh rupees on Google, on my advertisement, to promote my brand just on Google. Facebook alag se, Facebook is around 50 lakh rupees. But after spending 35 lakh rupees on Google, I'm able to get some clicks. How many clicks? 58,000, right? 58,000. That's an interesting number. But 58,000 clicks ke samein, there are 6,000 applications or maybe 6,600 applications. The people who are very serious about my courses, about Skill Circle courses. What's the conversion ratio? I can't reveal you the exact number. I want to show off my wealth, right? But keep it a benchmark. It should be minimum 10%. Education industry में 10% conversion आ सकता है अगर आपकी hot leads हैं तो. That's our number. Especially in the small courses. जो बड़े टिकट कोर्सेज होते हैं शायद उसमें कम हो सकता है, बट छोटे को 3 महीने 6 महीने के कोर्सेज हैं, 10% नंबर लाना कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, राइट? 6600 का अगर हम 10% भी निकालें तो 660 होता है, एवरेज करें तो 600 होता है। अगर मैं अपने कोर्सेज की फीस की बात करूं, टेक इट रफली अराउंड 50,000 रुपीज। इफ यू डू मल्टीप्लीकेशन 50,000 इंटू 600 मल्टीप्लाई करोगे तो ये करीबन 3 करोड़ रुपए आता है। नॉट अ बैड नंबर एट ऑल, राइट? 600 into 50,000. If you do the multiplication, it's 3 crore rupees in revenues. We spent 35 lakh rupees. We made 3 crore in revenues. Actual number is way higher. I don't want to reveal that. But can you just sense that what the business is this? I'm not saying to start a business. I'm not saying कि अपनी जेब से आप 35 लाख रुपए खर्च कर दो। अगर 10 साल पहले मैं होता तो मैं भी डेफिनेटली मैंने 1 रुपए भी खर्च नहीं किया था गूगल एड्स में। But the idea is to learn all this, to get a job at a decent company in performance marketing. And I must tell you, it's a beautiful industry. मैं अभी आपको दिखाऊंगा, मामा अर्थ इज हायरिंग, लेंसकार्ट इज हायरिंग, बोट इज हायरिंग, यू नेम इट and go to Google and just search dash company performance marketing jobs. You will be able to get one. But the problem of the industry is the talent is not enough. बहुत सारे बच्चे इस इंडस्ट्री में हायर तो करना चाहती है कंपनी, बट बच्चों को नहीं आता। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे जाऊं, टेक एन एग्जांपल कैंपेन्स, एंड कैंपेन्स के नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, लेट मी जस्ट गो टू, अगर आपको ये इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी एड चल रही है मार्केट में, देयर सो मेनी पीपल हु आर जस्ट रनिंग एड ऑन दीज कीवर्ड्स। बट अगर मैं यहाँ पर जाऊं कैंपेन इनसाइट्स में, लेट मी जस्ट शो यू द कैंपेन इनसाइट्स। नाउ दीज आर द पीपल जिनसे मैं फाइट कर रहा हूँ एडवर्टाइजिंग में। तो अगर आप देखो यहाँ पर ये मेरी कॉम्पिटिटर कंपनीज है। आई हैव अ मार्केट शेयर ऑफ 49%, व्हिच इज फेयरली इनफ, राइट? Or approximately 50%. Their companies and all the names are listed here, right? I'm fighting with them. In fact, I'm fighting with HBS.edu.
Harvard Business, standard.edu. That's a huge organization in itself. But I'm fighting online. I'm doing decent in terms of advertising. You have to master it. You have to learn it. कि अगर हम Google Ads सीख रहे हैं या performance marketing सीख रहे हैं, हमें औरों को कैसे beat करना है in terms of ad. Because देखो Google आपको बोलेगा, वो उनको भी तो बोल रहा है कि तुम्हारा नंबर 1 पे आ जाएगा, और सिर्फ पैसे वाला नहीं जीत सकता. आपकी एड में क्वालिटी स्कोर चाहिए, आपके लैंडिंग पेज फास्ट होनी चाहिए, आपका यूआरएल स्ट्रांग होना चाहिए. ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर जब कभी आप सीखोगे तो ये चीजें आपको पता चलेंगी. बट इफ यू एबल टू लर्न इट, आई एम गोइंग टू शो यू लाइव राइट नाउ हाउ यू कैन मेक अ करियर पाथ इन इट. आई एम श्योर आपको एक केस स्टडी समझ में आई. अब हम करियर पाथ की बात करते हैं कि ठीक है, इसमें करियर कैसे बनेगा. आई एम नॉट अ बिजनेस पर्सन. शो मी हाउ टू गेट अ जॉब ऑफ 1 लाख रुपीज और मोर इन दिस इंडस्ट्री. आई एम शोइंग यू लाइव. फॉर दैट, उसके लिए मैं गूगल पे जाता हूँ. एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग यहाँ पे लिंक्डइन पे होंगे. संदीप, आई वांट टू नो ऑल दीस स्टूडेंट्स आर ऑन लिंक्डइन. जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, Yes, most of them are on the LinkedIn. I strongly suggest everyone, because LinkedIn is not a hiring platform. First of all, we have to make it clear. It's a professional networking platform. जैसे हम Instagram यूज करते हैं, राइट? Instagram पे हम स्नैप्स डालते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, Snapchat यूज करते हैं. LinkedIn थोड़ा सा अलग है. LinkedIn पे डेफिनेटली जॉब्स के बारे में बातें नहीं होती, वो एक पार्ट है उसका. LinkedIn पे हम अपने प्रोफेशनल सर्कल को एंगेज रखते हैं. तो अगर मैं यहाँ पर जाऊं एंड टेक एन एग्जांपल, आई जस्ट ओपन LinkedIn and let me just open my LinkedIn profile and LinkedIn account. Now this is my LinkedIn feed looks like, and this is my account obviously. Now let me just search a sample, let's say Vikrant. I'm just showing you a case study. कैसे एक स्टूडेंट एक रूरल बैकग्राउंड से आकर परफॉर्मेंस मार्केटिंग में जाता है एंड बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग करियर बनाता है. So if I just open the profile of Vikrant Naresh, now this guy and I maybe just connected for like 2 years. That's it, right? He came and he mentioned, he's a student of Chaudhary Charan Singh University, a very normal university based out of Uttar Pradesh, right? He was a student there and he was just normal, BCom, nothing fancy as such. He said that, Shivam, I'm a student of BCom, Chaudhary Charan Singh University, but you know what? I'm very skeptical about my career, कि मेरा career बन पाएगा नहीं बन पाएगा. I'm a son of a SI officer in Delhi Police, a sub inspector, and मुझे police officer नहीं बनना because I don't feel connected with that career. मुझे कुछ करना है but ये नहीं पता क्या करना है, but पैसा बहुत कमाना. Students speak like this कि पैसा बहुत कमाना है but ये नहीं पता क्या करना. So I just consulted him. I just gave him some insights about performance marketing, the way I'm doing it to you, right? तो इन्होंने हमारे courses है, तो हमारा course obviously किया, and he got a job in digital marketing agency through us. Because at Skill Circle we don't just provide trainings, we provide the jobs as well, the people who have completed the training. But the beautiful thing, he got a job at a digital marketing agency which is the partner of our company, Green Honchos. Now I'm pretty much sure all 200 participants or more, I can see the counter, there are so many participants out there, बहुत कम लोगों को पता है digital marketing agency क्या होती है. I want to give brief light about it कि digital marketing agency कैसे होती है and how you can get your first job in digital marketing agency and grow from there. Okay, let me give an example. Okay, let's take an example of brand called, I have a water bottle here, right? There's a company called Bisleri. Now, Bisleri is a huge company. अभी सुनने में आया था कि टाटा acquire कर रहा है, right? And around $1 billion valuation का उनको acquire कर रहे हैं. पर अगर आप Bisleri को Google पे जाके search करोगे तो आपको पता चलेगा Bisleri बहुत strong marketing करता है और उसका marketing का 500 करोड़ का है. लेकिन वो खुद से पैसा खर्च करता. आप कोई सी भी ब्रांड उठा लो, Lenskart, बोट, एनी डैम कंपनी आउट देयर, हर कंपनी अपना पैसा किसी थर्ड पार्टी से खर्च करवाता है मार्केटिंग के ऊपर में. ऐसा क्यों? बिकॉज दैट थर्ड पार्टी हैव स्पेशलाइजेशन इन स्पेंडिंग मनी ऑन डिजिटल और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म. उस कंपनी को हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बोलते हैं. डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इज अ थर्ड पार्टी कंपनी विच स्पेंड ब्रांड मनी टू मेक इट फेमस. एज सिंपल वर्ड्स, राइट? तो सिमिलरली ग्रीन हॉन्चोस इज अ वेरी रेप्यूटेड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बेस्ड आउट ऑफ नोएडा. इनके पास में ई कॉमर्स के क्लाइंट्स बहुत हैं, बीट फैशन, बीट रिटेल, बीट, देयर आर सो मेनी ई कॉमर्स कंपनीज दीस डेज. ये सारे क्लाइंट्स ग्रीन हॉन्चोस के पास में. एंड एवरी क्लाइंट, बिग शॉट, स्मॉल शॉट, दे पे ह्यूज मनी टू ग्रीन हॉन्चोस टू मेक देम ए ब्रांड. नाउ ग्रीन हॉन्चोस हायर डिजिटल मार्केटर्स इन बल्क, स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस मार्केटर्स इन बल्क, बिकॉज उनको जरूरत होती है. तो अगर आप कॉलेज से पास आउट और आपको लगता है मिंत्रा आपको हायर कर लेगा, इट्स वेरी टफ. बिकॉज मिंत्रा में अगर परफॉर्मेंस मार्केटर जाओगे, आपके पास में 3-4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. बट गोइंग टू एजेंसी विच इज मैनेजिंग द मिंत्रा अकाउंट इज कंपैरेटिवली इजी एंड दे पे यू गुड मनी एज वेल. तो अगर मैं विक्रांत का एग्जांपल दिखाऊं, अगर मैं विक्रांत के बायो सेक्शन में जाऊं, ही क्लियरली मेंशन I run campaign for Snitch, very famous company where all the Shark Tank sharks have invested. Rare Rabbit, Pape Jeans, Ahuja Sons, Liberty, Sierra Arms, Slay Coffee. Now imagine a 24 years old guy
who have run campaign for these legacy brands in just 1 year, and that too managing an ad spend of 1.5 CR a month. That's a mammoth spend. Now understand इस इंडस्ट्री में ग्रोथ कैसे मिलती है. देखो इस इंडस्ट्री में ग्रोथ ऐसे नहीं मिलती कि आपकी जॉब मिल गई 30,000 35,000 की, अगले साल 10% इंक्रीज हो जाएगा, फिर अगले साल 15. दैट्स नॉट हाउ अ ट्रेडिशनल ग्रोथ लुक लाइक्स. इसमें क्या होता है, अगर आप एक महीने में किसी ब्रांड का या मल्टीपल ब्रांड्स का 1 करोड़ रुपए स्पेंड कर रहे हो और फ्यूचर में जाके वो 10 करोड़ हो जाता है, आपकी ग्रोथ उस हिसाब से होती है. तो हाउ बिग योर अकाउंट इज, हाउ मच मनी यू आर मैनेजिंग फॉर एनी पर्टिकुलर क्लाइंट और ग्रुप ऑफ क्लाइंट, उससे आपकी ग्रोथ होती है. इसको मैं बोलता हूं एक्सपोजर. एंड दैट्स द बॉटम वर्ड आई वांट टू शेयर विद एवरीवन. Focus on exposure in young days rather than experience. There's so many youngsters जिनसे मैं मिलता हूँ, कहते सर मेरे पास में 5 साल का एक्सपीरियंस होगा ना, मैं टीम मैनेजर बन जाऊंगा. मैं कहा दैट्स नॉट द टाइम टुडे इज. अगर आपके पास में 2 साल सही कंपनी सही लोगों के साथ में है ना, 2 साल छोड़ो आप 1 साल में भी ग्रो कर सकते हो. इट्स टोटली अबाउट द टाइमिंग एंड द एक्सपोजर यू आर गेटिंग. तो इस बच्चे को एक्सपोजर मिल गया, मतलब 24 साल की उम्र में विराट कोहली की कैंपेन चला रहा है, बिग डील आउट देयर, राइट? बट सैलरी ज्यादा नहीं मिली, बट ही वाज हैप्पी. ही इज सेइंग कि शिवम यू नो व्हाट, आई हैव नथिंग टू लूज. मैं वहां पे 20,000 नहीं मिल रहे थे मुझे, आपका कोर्स या आपका प्लेसमेंट मिल गई, मुझे 35,000 रुपए मिल रहा है. आई एम हैप्पी गाय. ही वाज स्मार्ट बिकॉज़ उसको पता था 35,000 रुपए मिल रहे हैं. ही स्विच्ड द जॉब, ही गॉट 70,000 रुपीस. बिकॉज जो इंसान 1.5 करोड़ रुपए स्पेंड कर रहा है एक महीने के मैनेज कर रहा है, उसकी जॉब डेफिनेटली एक हाई पैकेज पे मिल जाएगी. तो ही गॉट सुपर हैप्पी बिकॉज ही गॉट व्हेन सेकंड जॉब ही गॉट अ सैलरी ऑफ 70,000 रुपीस. ही गॉट शॉक्ड. तो एमबीए भी नहीं किया, व्हाई दे आर पेइंग मी सच अ गुड पैकेज. मैं कहा जस्ट होल्ड ऑन, वेट फॉर 3 और 4 मंथ और 6 मंथ्स मोर, आपके पास में बड़े क्लाइंट आएंगे, आपका डेफिनेटली वैल्यू 1-1.5 लाख रुपए महीना भी चला जाएगा. इट जस्ट लाइक आपको अपने आप को बताना है मुझे ऐसी इंडस्ट्री में जाना है जो ग्रो कर रही है. बिकॉज जिस इंडस्ट्री में जाओगे और वो ग्रो कर रही है और आप उसमें बहुत अच्छे हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी वेरी गुड. इस हमारे साथ में इंटर्नशिप की थी, अगर आप यहाँ पे नीचे जाओ, इसने क्लियरली मेंशन किया है इंटर्नशिप विद स्किल सर्कल. तो सिर्फ पढ़ाई 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 नहीं होती, यू हैव टू वर्क ऑन रियल प्रोजेक्ट्स एज वेल. तो आपको किसी ना किसी कंपनी के साथ में इंटर्नशिप्स, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स करने होंगे जब उसमें ग्रो हो सके. दैट्स द जर्नी ऑफ दोस पीपल जो 1 लाख 1.5 लाख की जॉब लेना चाहते हैं मैंने 1-2 साल के अंदर में. बट दे आर पीपल, यू नो व्हाट संदीप, आई एम 100% श्योर यू नो पार्ट ऑफ अ बिजनेस स्कूल. आपने देखा होगा आजकल ना बिजनेस स्कूल में पढ़ते पढ़ते बच्चे अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं. ऐसे केसेस हैं क्या आपके साथ में? बहुत सारे आते हैं. दैट्स अमेजिंग. तो कुछ ऐसे फंड भी हुए आपके मतलब कॉलेज में, कुछ जिन्होंने कुछ सीड इन्वेस्टमेंट वगैरह रेज किया है? Yes, we have. I mean, this month 20th, that's this Saturday, we have an IRE conference. So Oh, nice. That's more work for that. So do you have an incubation for such student as well? Yes, we do have. It's IRE is all about that. So this That's so beautiful. big time conference where a lot of VCs going to be there in that event. That's super amazing because I went to so many colleges. They have a Atal incubation, kind of in those colleges. And इतनी खुशी होती है ना जब पहले होता था कि बैच 2011, बैच 2012 इतना पैकेज मिला. अब कॉलेज में जाओ तो ये देखो रमेश ने ये स्टार्टअप किया इन द ई-कॉम स्पेस एंड वो स्टार्टअप्स के लोगो लगे हुए थे. आई गॉट सो अमेजिंग यार, कॉलेज सिस्टम पूरा का पूरा चेंज हो रहा है एंड देयर आर सम कॉलेजेस व्हिच आर डूइंग फेयरली नाइस जॉब. नाउ कमिंग टू, बहुत सारे बच्चों के पास ना सीड कैपिटल नहीं होता. वो कहते हैं यार मैं बिजनेस करना चाहता हूं, आई डोंट हैव मनी, मेरे पास नहीं है 20 लाख रुपए लगाने के लिए. हालांकि देयर आर कॉलेजेस, देयर आर ग्रांट्स, देयर आर इंक्यूबेशन, देयर आर गवर्नमेंट स्कीम्स आउट देयर, बट आई एम टेलिंग यू राइट अपॉर्चुनिटी राइट नाउ राइट हियर. अगर आपको बिजनेस करना है और आप स्मार्ट हो और आपके पास में 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग. बिकॉज़ होता है कि बहुत सारे यंग बच्चे गलती कर देते हैं, एकदम से बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, दे लूज मनी, राइट? आई स्ट्रांगली रिकमेंड 1-2 साल आप काम कर सकते हो अगर आप बहुत जल्दबाजी में नहीं हो. मैंने भी किया था, राइट? मैं आपको एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहा हूं जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है बट आपका एक्सपोजर जरूरी है. वो है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी. टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस गाय. अगर मैं यहाँ पे जाऊं, अगेन लिंक्डइन, because I'm a super active user of LinkedIn. I have around 35,000 followers. If you see LinkedIn पे मैंने यहाँ पे खोला पुलकित जैन की प्रोफाइल. Now this guy came to me around 3-4 years back. He said कि you know what, I have done my bachelor's, I got a job at a company called Droom. There is a company called Droom, right? Very famous on Instagram. It's a automobile kind of venture जहाँ पे लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं और बेचते हैं. तो he was working there as a senior campaign analyst. Happy guy, 30,000 रुपीज सैलरी, दिल्ली में रहता है एंड आई एम श्योर कंपनी बड़ी थी तो आने वाले टाइम में और डेफिनेटली अच्छे इंक्रीमेंट हो जाते. बट ही वाज नॉट हैप्पी. कोविड से पहले की बात है. ही जस्ट केम टू अस एंड ही सेड दैट Shiv, I want to do something big, maybe start a venture someday. So why don't you start right now? He said I don't have money. Then I make him understand कि पैसा ही नहीं चाहिए होता, अगर आपके पास में थोड़ा सा एक्सपोजर है, थोड़े से कनेक्शंस है और डेफिनेटली बहुत सारा करेज है तो आप स्टार्ट कर सकते हो. करेज था इसके पास में. इसने क्या किया, ट्रांजिशन किया. मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं एकदम से हार्ड स्टॉप मत लो. हार्ड स्टॉप मतलब कि भाई कॉलेज कर रहे हो,
ड्रॉप आउट और कर लिया स्टार्टअप। कर सकते हो, मैं मना नहीं करता, मैं बोलता हूँ हमेशा सॉफ्ट स्पॉट या ट्रांजिशंस लेने चाहिए कि कॉलेज कर रहा हूँ, 1 साल काम किया, उसको ट्रांजिट करके मैंने बिजनेस में बदल दिया साइड आर्ट्स में काम करके। यूएस में ऐसा बहुत होता है कि लोग साइड आर्ट्स में काम करते हैं, साइड हसल्स करते हैं। तो इसने अपनी साइड हसल स्टार्ट की, ये प्लान बनाया कि मुझे जॉब छोड़नी है समाउ, अपने जो रात के 9 बजे से लेकर रात के 1 बजे का टाइम होता है उसको यूटिलाइज किया, and he just pitched to a school called GD Goenka, very prominent school in the Delhi area, and उनको बोला कि मैम देखो दुनिया डिजिटल जा रही है, और ये बात 2017 की है, राइट, कोविड से पहले। दुनिया डिजिटल जा रही है और आने वाले टाइम में डिजिटल होगी। मैं आपका इंस्टाग्राम पेज हैंडल करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए लीड जनरेट करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए कैंपेन, ब्रांडिंग, यूट्यूब एड्स, ये सब करना चाहता हूँ। एंड द प्रिंसिपल वाज कन्विंस्ड, बिकॉज ये उन्हीं का स्टूडेंट था, बचपन में यहीं से पढ़ा हुआ था, तो ही एबल टू मैनेज टू कन्विंस द प्रिंसिपल। And all the setup, he just asked 20,000 rupees. मैम फर्स्ट मंथ मैं आपके लिए फ्री करूंगा, बट इफ यू लाइक माय सर्विसेज आप मुझे अगले महीने से 20,000 रुपए पे करना, मैं जॉब छोड़ दूंगा। मैम वाज शॉक्ड, किया तू एक अच्छी खासी एमएनसी में काम कर रहा है, व्हाई जस्ट डूइंग डिजिटल मार्केटिंग फॉर अ स्कूल, व्हाट मोटिवेट्स यू टू डू दैट? ही सेड आई विल टेल यू माय प्लान्स लेटर, बस मुझे आप इतना अलाउ कर दो कि मैं घर बैठकर काम कर सकूं। मैम वाज ओके कि ठीक है तू मेरे लिए घर बैठकर काम कर, बट जो केपीआईज मैं तुझे दूंगी वो पूरे होने चाहिए, इतने फॉलोअर्स चाहिए, इतना ये चाहिए, इतना कंटेंट चाहिए, इतनी लीड्स चाहिए, डेफिनेटली यू हैव टू गिव इट। ही सेड ओके डन डील, लेट्स डू इट। नाउ जब इसने जीडी गोएनका के लिए कैंपेन स्टार्ट किया, ही वाज स्मार्ट, बिकॉज़ फ्यूचर में बिजनेस में नहीं बनना था। इसने पहली एक एजेंसी बना ली जिसका नाम रखा योर डिजिटल बोर्ड, एंड यू कैन सी दैट ही इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एट दिस कंपनी, राइट? Now at the age of 25-26 he is a managing director of agency. इसने जीडी गोएनका को पहला क्लाइंट बनाया, उसकी केस स्टडी बनाई, फिर दूसरे स्कूल्स को बेचना स्टार्ट किया। मैक्सफोर्ड द्वारका, लक्ष्मण पब्लिक स्कूल, द वेरी बिग स्कूल्स इन दिल्ली एनसीआर एंड इवन बैंगलोर, मुंबई, पुणे एज वेल। इफ यू द वेबसाइट टुडे, दिस एजेंसी, I'm just opening in front of you and the opening the website as well to just show you very transparently. You can pitch him on LinkedIn as well. You can connect him on LinkedIn as well. You can ask his, career story or something. If you just go down, these are all the services which he provide in the digital marketing agency: SEO, website designing, social media marketing, PPC, very similar stuff that I have just told you in digital marketing. These are the area, these are the services. अब ये सारी services ये देता है. If you see the clients, these all are the clients. If you just see this, Delhi Institute of Advanced Studies, OPJ World School, SPJ, Diamond Cubic, Zosmetics, Davos, all these are clients, and these are the clients which pay him 20-30,000 rupees a month for providing the digital marketing services. It's a service industry. तो technically आपका day zero पे कोई investment नहीं है, आप घर बैठकर काम कर रहे हो, आपके पास में क्लाइंट आया, आपने सर्विस देना स्टार्ट किया, 1 से 2 क्लाइंट्स हुए, 2 से 4, 4 से 8, आज इसके पास में 50 पेइंग क्लाइंट्स हैं। मिनिमम टिकट 20,000 रुपए में चले तो 50 क्लाइंट्स के अच्छे खासे पैसे होते हैं। इट्स 10 लाख रुपीस। आज इसकी कंपनी में 4-5 लोग काम भी करते हैं, मोस्टली कोई ऑफिस भी नहीं है। That's the beautiful career I'm talking about. That's actually digital marketing agency, more of a business. तो अगर आपके पास में क्लैरिटी नहीं है कि मुझे किस बिजनेस में जाना है, मुझे फ्यूचर में ये बेचना है या ये बेचना है, you can sell services in case you want to. But सर्विसेज भी बेचने से पहले एक करियर आता है जिसको हम बोलते हैं फ्रीलांसिंग। काफी अनस्टेबल करियर माना जाता है, बट वो भी बहुत अच्छा करियर है। उसका मतलब ये है कि आप दिल्ली में बैठकर, बैंगलोर में बैठकर अमेरिकन के लिए काम कर रहे हो, गोरों के लिए काम कर रहे हो। हाउ टू डू दैट? देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स। मैं जल्दी से बताऊंगा क्योंकि संदीप, आई एम श्योर मेरे पास लिमिटेड टाइम है, तो मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट और लूंगा और फ्रीलांसिंग के बारे में बताना चाहता हूं। विद योर परमिशन, कैन आई डू दैट? संदीप, कैन आई डू दैट? विद योर परमिशन, कैन आई टेल अबाउट फ्रीलांसिंग? Yes, please. Perfect. So the moment I just go to Google, now फ्रीलांसिंग हम नटशेल में समझते हैं। Amazon पे लोग प्रोडक्ट बेचते हैं। जैसे मान के चलते हैं, मेरे पास में फोन का कवर है, मैंने ताइवान से इंपोर्ट किया 100 रुपीज का, मैंने Amazon पे 1100 रुपए का फ्लिप कर दिया, आई मेड 1000 रुपीज प्रॉफिट माइनस द डिलीवरी चार्जेस एंड ऑल दैट स्टफ। सिमिलरली इंटरनेट पे लोग सर्विसेज भी बेचते हैं। सर्विसेज का मतलब, अगर संदीप को एक वेबसाइट बनानी आती है, मुझे सोशल मीडिया करना आता है, तो पूरी दुनिया में लोग हैं जिन्हें ये काम चाहिए। लाइक एग्जांपल, अगर आपको कंटेंट लिखना आता है, देयर आर पीपल जिन्हें कंटेंट होगा। नाउ वो फुलफिलमेंट आप फ्रीलांसिंग के थ्रू कर सकते हो। आप बैठे बैठे यहाँ पर कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, न्यूजीलैंड, यू टॉक एनी कंट्री, उनके लोगों के लिए काम कर सकते हो। वो आपसे ही क्यों करवाएंगे? गोरो लोगों से क्यों नहीं करवाएंगे? बहुत सिंपल आइडिया है कि आप सस्ते हो। The very first factor is this. अगर आप अमेरिकन इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी को देखोगे यार, बहुत फर्क है। यहाँ पे इंडिया में एक वेबसाइट 5,000 रुपए की लोग बना देते हैं, अमेरिका में 1 लाख से कम चार्ज नहीं होता। दुबई जाओगे यहाँ पे 70,000 रुपए से कम चार्ज नहीं होता। एक नॉर्मल स्टैटिक वेबसाइट आई एम टॉकिंग अबाउट।
और आपको पता है एक नॉर्मल स्टैटिक वेबसाइट बनाने में 2 से 4 दिन लगते हैं, वर्डप्रेस के ऊपर में एक सॉफ्टवेयर पे बन जाती है, उसके लिए कोई कोडिंग भी नहीं चाहिए। अब मैं आपको कुछ फ्रीलांसिंग के बारे में बताता हूँ। अब देखो फ्रीलांसिंग में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, अपवर्क है, ट्रूलांसर है, फ्रीलांसर है, देयर आर सो मेनी अबंडेंस ऑफ वेबसाइट्स आउट देयर। उनमें से एक वेबसाइट है फाइवर। 101% सबको इसका नाम पता होगा, कि 20 स्कूल के बच्चे बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रोफाइल भी बना करके होते हैं। बट देयर आर पीपल जिनको ये नहीं पता कि गिग कैसे सेल होगा। ये तो पता है फ्रीलांसिंग से कुछ पैसा बनता है, अवेयरनेस है, बट दे आर नॉट एबल टू टेक एक्शंस बिकॉज द राइट मेंटोरशिप इज मिसिंग। तो अगर मैं यहाँ पर किसी का गिग खोल के दिखाऊं, फॉर एग्जांपल दिस पर्सन जो ये बोल रहा है कि मैं आपकी वेबसाइट बना दूंगा 10 घंटों के अंदर में, very normal guy, you know, a college student, looks like a college student or maybe passed out college student, ये बोल रहा है कि मैं आपकी वेबसाइट 10 घंटों में बना दूंगा। अब संदीप फ्रैंकली स्पीकिंग 10 घंटे में वेबसाइट बनाना बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। एक थीम चाहिए, कुछ कंटेंट चाहिए, आप अपलोड करोगे, डिजाइन चेंज करोगे, हो सकता है 10 घंटों में बन जाए, नॉट अ बिग डील। बट ही इज चार्जिंग गुड अमाउंट, 8,627 रुपए फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क, डिसेंट मनी। बट इफ यू गो टू द स्टैंडर्ड पैकेज में ज्यादा नंबर ऑफ पेजेस की वेबसाइट बनाएगा। बेसिक पैकेज में 3 पेज वेबसाइट, स्टैंडर्ड में 28,000 रुपए। जब मैंने पहली बार पढ़ा था ना, व्हेन आई वाज न्यू हियर इन दिस इंडस्ट्री, मुझे लगा यार 28,000 रुपए कोई कौन क्यों देगा यार, इट्स अ बिग मनी यार, 28,000 रुपए वेबसाइट बनाने के कोई क्यों देगा। बट देयर आर पीपल, अगर इसका थर्ड पैकेज आप देखो, ही इज चार्जिंग 41,000 रुपीज एज वेल। अब इसमें फाइवर का क्या फायदा होगा? फाइवर 20% कमीशन चार्ज कर देगा। फाइवर का बहुत सिंपल सा मॉडल है कि जो भी तुम वेबसाइट बनाओगे, जो भी तुम सर्विसेज बेचोगे, 20% मेरा, बाकी सब तुम्हारा, एंड इज ओके विद इट, राइट। अगर हम मान के चलिए इसका एवरेज पैकेज बिकता है 28,000 रुपए का, 20% फाइवर को चला गया, 5,000 रुपए फाइवर को चले गए, इसके पास बचे सिर्फ 20,000 रुपए। लेट्स से एवरेज ऑर्डर कार्ड इज 20,000 रुपए। संदीप जस्ट सी द नंबर्स, यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है 23 orders in queue. That means 23 people have paid in advance in the month of May. Advance payment हो चुका है उनका। Now if you do the match, 20 into 23, it's approximately 4.5 lakh rupees. Now see this person eyes closely. इस लड़के की आंखें को देखो, ये लड़का करीबन 4.5 लाख रुपए इंटरनेट से बना रहा है टोटल लेजिटिमेट तरीके से। लेकिन आपको पता है कौन सी स्टेट का है, मतलब कौन से शहर का आपको लगता है? Any idea, Sandeep? You're talking about? Definitely not Bangalore. Not Bangalore. Northern part of the country. Not in the country. Can you just tell me the Northern part of the country, somewhere probably Gujarat say, yeah, Bihar, UP. Okay, we can speculate about it. We can't actually know about it. But the big thing is, no matter what the place is, maybe it's a village, maybe it's a kind of town, he's making a good 4.5 lakh rupees by just making a static WordPress website. Not even coding, right? But if you just go down, people will be amazed, right? Whenever I just show this data, people will amaze. If you see his place, he's from which place? Pakistan. It's Pakistan. It's a neighbor country, right? The crisis going in Pakistan right now. हमें लगता है पाकिस्तान के लोग बम बनाते हैं, but there are people जो वेबसाइट भी बनाते हैं. Very interesting. And if you see the last delivery is 55 minutes. 55 मिनट पहले जब हमने सेशन स्टार्ट किया था, ये एक वेबसाइट सेल करके बैठा हुआ था. That's not bad, right? But it takes time. If you see, कब से ये सब कर रहा है? 2015. It takes time. लोगों को लगता है कि बस मैंने आज ये किया और कल ऐसा हो जाएगा. Usually it doesn't happen like that. I'm sure बहुत सारे sacrifices, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी mentorship लगी होगी, तब जाके it took 7-8 years to make 4.5 lakh rupees a month. हो सकता है इसको 7-8 साल लगे, आपको शायद 1-2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए. Totally depend कि आप कितना एक्शन लेते हो. So that was more into freelancing. I understand कि मैं अभी थोड़ा monetary part पे focus कर रहा हूँ because बच्चे उससे जल्दी connect हो जाते हैं. But there's so much to it. There is a website designing, there is a social media marketing, there is a PPC, ORM, branding, and there's so much to it. So Dindi, I want to tell you, if you want to become a business owner, you can learn digital marketing, you can grow your business. Even if you don't do digital marketing on your, that's fine. But कल को अगर आप लोग hire करोगे, उनको भी तो आनी चाहिए. There are so many, family business entrepreneurs हमारे पास में आते हैं, जो कहते हैं कि यार हमारा business 100 करोड़ का, but हमारे पास में टाइम नहीं है सोशल मीडिया पे एड रन करने का. I always tell them, it's not about कि आपको रन करना है. It's definitely not about micro management. आपको लोगों से रन करवाना है, but you have to make sure कि वो सही कर रहे हैं. इतने सारे लोग हैं जो गलत तरीके से करते हैं और ओनर्स को पता भी नहीं चलता. So they should, empower themselves. The next generation, maybe the students who are, studying in this GIBS, they're the business people who are coming from a business background. They should learn it so that कोई लोग उनको बेवकूफ ना बनाए. Number one. The second, people who want to get a good job out there. मैं strongly बोल सकता हूँ, my bet on performance marketing. Digital marketing बहुत बड़ा है. Social media, SEO, there's so many things out there. बहुत सारी verticals के अंदर में creative angle है. अगर आप reels creative नहीं बनाओगे तो नहीं होगी viral, बहुत simple है. But अगर आप performance marketing में campaigns अच्छे बनाओगे,
there is a guarantee कि कैंपेन का रिटर्न आएगा, ये गूगल बोलता है। वेरी इंटरेस्टिंग। सो मैं मोस्टली बच्चों को यही बताना चाहता था, ऑल द स्टूडेंट, द फैकल्टी, स्टेक होल्डर्स। बस एक चीज और ऐड करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। I always read this statement every time. If you're not paying for the product, you are the product. Every day, all the companies are chasing you. Be it Facebook, be it Instagram, be it Shadi.com, be it Jeevan Sathi, depending on your age and interest. Every damn company is chasing you. Now you have to decide कि आपको chase होना है या फिर आपको दूसरे लोगों को chase करना। So always see from the other side of the table. If you know advertising, if you know marketing, I'm sure definitely you can do wonder. And comes to the growth plan, it's amazing. काफी अच्छा growth है जो मुझे लगता है यहाँ पे हो सकता है। बहुत सारी profiles निकल कर आती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ performance marketing है। Don't take it wrong. बहुत से लोगों को लगता है digital marketing is equal to performance marketing. It's not. Website designing, copywriter, social media marketer, campaign analyst, campaign marketer, SEO executive, community manager. There are approximately 32 different profiles under digital marketing, which I've narrowed down in the last 7 years. Now, there are so many success stories. Because of lack of time, I don't want to go with that. I just say one thing. जैसे आज तो हम एक ऑनलाइन सेशन कंडक्ट कर रहे हैं और इतने सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ में हैं। आई एम अ गेस्ट फैकल्टी एट सो मेनी बी स्कूल्स एज वेल। मैंने एक चीज देखी यार, बच्चों को कुछ नहीं आता। मतलब आई गो टू वेरी प्रोमिनेंट बी स्कूल, पीपल नो नथिंग अबाउट इट, बट सबको पैकेज चाहिए 15 लाख 20 लाख रुपए का। दैट्स द प्रॉब्लम, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को कॉलेज में पढ़ते पढ़ते कॉलेज के कुरिकुलम के साथ साथ बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स करने चाहिए, सो दैट दे आर रेडी फॉर द मार्केट नीड एक्चुअली। बिकॉज आज अगर हम GIB से बच्चों को हायर करेंगे, आई एम श्योर आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट सेपरेटली, मुझे ऐसा लगता है कि उन बच्चों के पास में अगर स्किल्स हैं, दे विल डेफिनेटली गेट अ गुड पैकेजेस एज वेल। तो अच्छे स्किल्स के साथ में आप बहुत अच्छी सैलरीज भी ले सकते हैं। अगर आपको बिजनेस नहीं भी करना है, दैट्स टोटली फाइन। दीज आर द ट्रेनिंग्स वी प्रोवाइड एट स्किल सर्कल। अगर आप में से कोई जानना चाहता है इनके बारे में, हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग्स पूरे इंडिया, पूरे पैन वर्ल्ड भी होती है। कनाडा से भी बच्चे पढ़ते हैं हमारे साथ में। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, हमारी लोकेशन दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़ है, तो आप इन ऑफलाइन सेंटर में पढ़ सकते हैं। कोई भी अगर आपको हेल्पलाइन, कुछ भी ऐसी हेल्प चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, एडमिशन लेना हो या ना देना, दैट्स फाइन। अगर आपको करियर गाइडेंस भी चाहिए, आई एम हैप्पी टू प्रोवाइड ऑल द फ्री करियर गाइडेंस। अगर आप हमारे साथ में इंटर्नशिप भी करना चाहते हैं, आप इस नंबर स्क्रीनशॉट को रख सकते हैं, एंड यू कैन रीच आउट फॉर माय टीम फॉर एनी असिस्टेंस इन योर करियर। So this is from my side. If anyone wants to ask any question, they can do that. Great. I must say that आपने गुंजाइश नहीं छोड़ी सवालों के लिए, आपने सब कुछ ही कवर कर दिया है। So anyways, there were many questions, but due to the shortage of time, we'll just take few of the questions. Okay. And this has been asked by Adarsha. He says, can AI replace a digital marketer in any way? How digital marketer would work or look like in next 10 years in future? Very interesting. So predicting the future is very interesting thing. आप घर बैठे बैठे कर सकते हो. But if we talk about recent developments in AI, अगर आप Infosys के जो चेयरमैन है नारायण मूर्ति, उनका भी अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे, वो बोल रहे हैं AI can't replace human beings for sure, right? ह्यूमन इंटेलिजेंस को नहीं ब्रेक कर सकता। हाँ, बहुत जगह AI का डेफिनेटली यूज केस है। इनफैक्ट परफॉर्मेंस मार्केटिंग में बहुत अच्छा यूज केस है कि आप अपने कैंपेन्स को ऑटोमेट कर सकते हो, कि जैसे ही 5 रुपए कटे तो आपका अगला कैंपेन बंद हो जाए। वहां पे AI बहुत स्ट्रांग है, बट एंड ऑफ द डे उस AI को भी ड्राइव करने के लिए स्मार्ट लोग चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी अगर आपका अभी करंट पैकेज से 5 लाख रुपए विदाउट AI है, विद AI इट विल बी 8 लाख रुपीस। तो कॉस्ट कटिंग नहीं होने वाला, बट AI के यूज केसेस बहुत सारे आने वाले हैं फॉर श्योर। एंड द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स मोर टारगेटेड, मोर पर्सनलाइज, और ये फ्यूचर में आप देखेंगे तो AI के साथ में बहुत ज्यादा पॉसिबल है फॉर श्योर। Great, thank you so much for that. The next question is being asked by Vikram Rao. He says, how can storytelling be leveraged in digital marketing to create impactful campaigns? So if you, I'm sure you know, you love ice creams, right, Sandeep? Absolutely. So there is a brand, if you know Naturals. Naturals, yes. If you go to Naturals and just see the storytelling pattern, how they started, how they kind of reach out, you must, they have put their own walls, right? They have used storytelling to brief about the brand, and the brand consistency is so amazing. अब चाहे Natural का graphics open कर लो, Natural की website open कर लो, Natural के store पे चले जाओ, the brand palette, the color, the marketing, the feeling is entirely equal in every brand communication. So I believe whenever you are a marketer, you have to maintain your brand communication so strong so that whenever a customer goes, they can feel your brand equally at every platform. So that's why storytelling is a beautiful thing when someone is practicing digital marketing for sure. Super. Thank you so much for that. Ishita Patel asked, sir, how are some creative techniques to enhance our user experience and conversion rates in digital marketing, sir?
Very interesting. I really appreciate this question. Ishta, you know what? When we run campaigns, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ क्योंकि थियोरेटिकल मुझे अच्छा नहीं लगेगा. I just go to live my screen. Now I just search, let's say, best makeup artist in Bangalore. There's so many girls and they hire makeup artists. So I just search Bangalore. The moment I search it, now Wedme Good is running one campaign. एंड अभी मुझे बाकी सारे लोगों के कैंपेन्स नहीं दिख रहे, बट द मोमेंट आई जस्ट ओपन वेडमी गुड, तो आप देखो यहाँ पर इन्होंने 4 सेक्शंस भी डाल दिए हैं. ट्रैवल्स टू वेन्यू, ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट, ऑफर एयर ब्रश. सिमिलरली इफ आई सर्च मेकअप आर्टिस्ट कोर्स इन दिल्ली, जस्ट एग्जांपल, देयर सो मेनी इंस्टीट्यूट्स और मे बी द मेकअप आर्टिस्ट जो कोर्सेज भी ऑफर करते हैं. तो अगर आप यहाँ पर देखो 2 तरह की एड्स आ रही हैं. एक आ रही है दीप्ति चौहान makeovers.com और नंबर 1 पे आ रही है ओरेन इंटरनेशनल, दैट्स अ ब्रांड. अगर आप इन दोनों की एड को कंपेयर करोगे ना, जो फर्स्ट वाली एड है उसमें ज्यादा फीचर्स आ रहे हैं, उसमें लोकेशन भी आ रही है, 7 लोकेशन और है, ये भी आ रहा है, और छोटे छोटे पॉइंटर्स आ रहे हैं, गेट सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट कोर्सेज, कॉन्टैक्ट अवर करियर सपोर्ट. दीज आर एड एक्सटेंशंस. जब हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग सिखाते हैं तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है बतानी कि सिर्फ एड बनाने से कुछ नहीं होगा. एड के अंदर जो निटी ग्रिटीज है, जो क्वालिटी स्कोर है, जो एक्सटेंशंस है, वो भी डालनी जरूरी है, जिससे आपकी एड का कन्वर्जन रेट, क्लिक थ्रू रेट बढ़ जाए. एक बार CTR बढ़ेगा, फिर हम लैंडिंग पेज पे जाएंगे. फिर लैंडिंग पेज पे हमें देखना पड़ेगा क्या कलर पैलेट यूज करें, कितना स्पीड होना चाहिए लैंडिंग पेज में, वहां पे हम कन्वर्जन रेट की बात करेंगे. लेकिन CTR बढ़ाना है तो आपकी एड डिफरेंट होनी चाहिए, औरों से नॉर्मल नहीं होनी चाहिए. और अगर कन्वर्जन्स बढ़ाने हैं तो जब एड पे कोई क्लिक करता है तो आपका लैंडिंग पेज इतना अपीलिंग होना चाहिए कि लोग उसमें फिल करें. जैसे अगर आप इस लैंडिंग पेज को देखो, एक बहुत नॉर्मल सा लैंडिंग पेज लग रहा है, विच इज फाइन बिकॉज इट्स टारगेटिंग द फीमेल्स एंड दैट टू मेकअप आर्टिस्ट, एस्पायरिंग मेकअप आर्टिस्ट. द मोमेंट आई जस्ट ओपन अदर लैंडिंग पेज, यहां पर देखो बहुत सारी चीजें आ रही हैं. सबसे ऊपर तो एक ब्लू कलर का हेडर आ रहा है, पर्पल कलर का, जहां पे बोल रहा है कि गेट 10% ऑफ कॉल नाउ. बट यहाँ पे प्रॉब्लम है, उन्होंने अपना नंबर पहले ही दे दिया. अब लोग ये सोच लेंगे हाँ मुझे नंबर मिल गया, बट वो फाइल नहीं करेंगे. इंस्टेड यहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए था जहाँ पे डेटा मांगना चाहिए था. इसका कन्वर्ट बहुत अच्छा हो सकता है. बट दीप्ति चौहान इज सॉर्ट ऑफ न्यू प्लेयर इन द मार्केट. उसको नहीं पता मार्केट में एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से होता है. शी इज अ न्यू प्लेयर एंड जस्ट शी रनिंग एड कैंपेन्स. तो अगर आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस मार्केटर है, दीप्ति को डेफिनेटली 20% ज्यादा का बिजनेस का फायदा करा सकता है. कीपिंग द एड स्पेंड इज वेरी सेम. तो देयर इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोस पीपल जो कन्वर्जन्स बढ़ाना चाहते हैं, फॉर श्योर. Yes, Sandeep. Thank you so much for that. So we'll just take up last one more question. This has been asked by Rahul saying, he says, how can email marketing be used to nurture leads and build customer relationships? Very interesting. You know what? अगर आप Google पे जाओगे, is email marketing dead? There's so many people think like that because email marketing की जगह आजकल Instagram DM ने replace कर दिया. अगर हमें किसी से बात करनी होती है, Instagram DM करते हैं. और in fact Instagram DM का conversion rate better होता है email marketing से. अगर आप 10 लोगों को Instagram DM करेंगे तो 5 का या 4 का या 2 का तो रिप्लाई आ जाएगा. पर जब हम ईमेल करते हैं तो बहुत कम लोगों का रिप्लाई आता है, स्पेशली कोल्ड ईमेल्स का तो रिप्लाई बहुत कम आता है. बट स्टिल आंसर गूगल जो आपको देगा ना, ईमेल मार्केटिंग इज नॉट डेड. तो ईमेल मार्केटिंग इज जस्ट अ काइंड ऑफ मोर सीरियस कनेक्शन विद योर कस्टमर्स. तो अगर आपके पास में एक कस्टमर डेटाबेस है, मान के चलते हैं GIBS, उनके पास में इतने सारे स्टूडेंट जो उनके एलुमनाई हैं, जो प्रेजेंट स्टूडेंट हैं, एंड दे एबल टू pull a great conversation with their customers, with their students. तो I believe उनके जो campaigns हैं वो ज्यादा conversions लेकर आएंगे rather than just being a sales pushy emails out there. तो अगर आप अपनी जो email list है उसको सिर्फ sales marketing से related चीजें बातें करोगे तो definitely एक अच्छा contact rate नहीं बनेगा, ना open rate अच्छा होगा, ना conversion rate अच्छा होगा. आपको अपनी repo बनानी पड़ेगी और email segments पे divide करना पड़ेगा. There is a segment जो हमारे frequent openers हैं, there is a segment जो हमारे loyal visitors हैं, there is a segment जो साथ से उन्होंने एक भी email open नहीं किया, उनको अलग अलग emails लिखने पड़ेंगे. And there is a concept of called drip emails और email automation कि जैसे ही वो पहले मेल खोले उसके 10 दूसरा चला जाएगा, उसने नहीं खोला तो ये चला जाए. ये अगर आपने कर लिया ना, you can become a great email marketer. And trust me, आप naukri.com या indeed.com पे जाकर देखो, there are email marketers जिनकी सैलरी 1-1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए भी होती है. It's not a normal job at all. तो in short, अगर आप email marketer बनना चाहते हो बनो, बट जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन ये मत बनना. यू शुड बी मास्टर ऑफ वन. आप ईमेल मार्केटिंग में एकदम बेस्ट हो जाओ, आपको ड्रिप ईमेल्स आते हैं, ईमेल ऑटोमेशन आते हैं, पर्सनलाइज्ड ईमेल्स आते हैं, देन डेफिनेटली यू कैन डू सच अ ग्रेट थिंग एट ईमेल मार्केटिंग एज वेल. Super. Thank you so much, sir. I must say, Shivam ji, lot of content, lot of information which we have learned today, and I'm sure it was an eye-opener session for all of us, and for all those young students who have been looking forward for
upcoming future in the digital marketing, as we are all aware कि हर कोई देख रहा है सर आजकल AI का जमाना है, business analytics का जमाना है. So these are the few buzzwords which most of the students are looking forward for. But whereas when you spoke about digital marketing, I must say this is a clear picture. I loved your point which you said, be a master of one rather than being a jack of all. Right. So thank you so much for that. It was indeed a very, very inspiring and very informative session which you have given. Heartfelt gratitude to you. I would love to express my gratitude. And on behalf of the entire GIBS family, I would love to thank you for that, for sparing your time. I'm sure you had a lot of schedules, but despite that, you took out time from your busy schedule and you made it to for us and as well as for all our participants. Thank you so much for being with us. And I would also like to thank all the participants who have joined in. So I'm sure this session was very, very helpful. This will also be put on GIBS YouTube channel. So in case if you have missed out on any of the points, if you have lost any, you could not follow it up, you can recheck back on the social media platforms. And I must say, Mr. Shivam is very, very active in all the social media platforms. In case if you need to take any assistance, if you need any help or anything, any support as such, I'm sure the entire team is there to assist you with. And do not forget to follow us on social media platform as well as Mr. Shivamji on the social media platforms. Just one small information that your certificates of this session will be released in next 2 working days. And our next upcoming IRE talks will take place on 26th of May. At the same time, that's 4:30 p.m. by featuring Ms. Diksha Dogra, the founder of Reimage by Diksha Academy. Right? So she's also a Joe Stock speaker, by the way. So looking forward to see you once again. And Shivamji, I love your energy, I must say. Thank you so much for joining in. And I'm looking forward. Please, whenever you're there in Bangalore, do visit us. Yes, I'll definitely come to Bangalore. I'm super excited to visit your campus. Right. We would be really happy and we would love to host you at GIBS Bangalore. Done. Thank you. Thank you so much for joining for all of us. Thank you so much, Sandeep. Really appreciate it. Thank you so much.